What is the update on the Ukraine-Russian conflict? मतलब सर ये खत्म ही नहीं हो रहा है. वो खत्म होगा भी नहीं. See, the point is, The Prime Minister meets Zelensky and the National Security Advisor meets Putin. Prime Minister Modi is the only Prime Minister जो पुतिन को बोल सकता है कि ये समय वॉर का नहीं है. आज का युग युद्ध का है नहीं. Our neighborhood has gone crazy. I think one of the best lines that describes India's neighborhood is that nobody likes a good and a big neighbor. Establishment of a theater command will actually help us better tackle the neighborhood in terms of security. I personally don't think so that Pakistan is a big threat to us. We don't want Bangladesh to be the next Iraq. Imran Khan is going to come back. Really? तो ईरान को ये चाहिए कि भाई मेरे को इजराइल को तबाह करना है, इजराइल को चाहिए कि मेरे को ईरान को तबाह करना है. बीच में ऊपर आ गया हिजबुल्ला. So Hezbollah is an extremist wing of Lebanon. In this context, I want to talk about I2U2 initiative. Africa, coups, civil wars, disease outbreak, but a land of opportunity. Africa has always been known as the sleeping giant. In this context, a new concept is emerging that is Global South. There are 3-4 families and companies who own the world. Donald Trump businessman है और उसने पैसा खुद अपना कमाया है, तो उसको पता है बिजनेस कैसे चलता है और उसको पता है बिजनेस इस समय इंडिया के साथ ही चल सकता है. What is this Indo-Pacific game? Is it related to the South China Sea? And in this context, the importance of maritime diplomacy. Fasten your seatbelts, folks, because today's podcast episode will be nothing short of a global adventure. This episode will be your geopolitical recap. From Asia to America, from Europe to West Asia, we will dive into the most pressing global issues in this episode. Mr. Dipanshu Singh, welcome to the Gaur Se Suno podcast. So when I was preparing for UPSC exam, international relations was one of my favorite subjects. And I was really looking forward to having a conversation on international relations and geopolitics with you. I'm 100% sure that this podcast will be a great learning experience for me as well as the audience. So welcome and thank you for being on the show. Thank you so much for having me. And recently, as you started with your podcast, and I remember the day you messaged me for this. In fact, I was also thinking from quite some time that we should have a podcast where we kind of, give this idea of how really international relations work, not just for people who are preparing for UPSC, but also for the general audience. So thank you, first of all, for having me here. Looking forward to it. Right. So in this podcast will be like a world tour. We'll start from our neighborhood and then we'll take a world tour across the globe and touch upon all the major issues which are in the news. And I would love to know your perspective on each of the burning issue across the world, right? So, first of all, our neighborhood has gone crazy. The Pakistan has always been unstable. Sri Lanka has a new government now. Bangladesh is in crisis. Nepal, again, you never know which side Nepal is on. Yeah. And Myanmar, again, going through a civil war and a coup. In this scenario, can you tell us, or we can go through a SWOT analysis, that what should be the India's strategy to tackle this neighborhood? Because neighborhood first is our policy, right, and it is the most important area our foreign policy should focus on. Right. So I was really curious to know that can we do a SWOT analysis, identifying the strengths, weaknesses, opportunities, and threats? And I think you'll be the best person to do that. So I remember when I was writing my second book on foreign policy and international relations, I was going through some of the journals. I think one of the best lines that describes India's neighborhood is that nobody likes a good and a big neighbor. So I think that kind of, also gives you the hint that what really happens in India's neighborhood. So as you asked that, we should do a SWOT analysis of how India's neighborhood is, also, as you mentioned, that India's foreign policy aligns around, neighborhood first policy. So I think we have always been on the difficult side of things, because if you even go from the historical perspective through the civilization that we used to have, the Aryan race or, Indus Valley civilization, I think India, had a very significant and strategic position because we were blessed with good weather, we were blessed with waters all around. So, and of course, the natural resources that we have. So once, the geopolitics came into the picture, the lines were divided on the ground and the borders were created, it became difficult for India to, manage these neighbors. So I think the biggest threat to India, apart from Pakistan, which we always keep on
or we are rather concerned about. I personally don't think so that Pakistan is a big threat to us. I think it's more about the deep state, or the other political or non-political actors which are influencing the policy there. So I think it's more of China that India should be worried upon. So if, I think I'll probably take you from your audience perspective. I'll take you from the north to south, and then we Great. can go Yeah. do a clockwise or an anti-clockwise analysis. So I think on the north, the biggest threat for us, as I mentioned, is China, especially as you know that they have this policy of the salami slicing, where they try and capture this, because this is a very important term that Salami is slicing. it is called as salami slicing, like how you have chicken salami slices, Right. like you have very thin slices. So what China does is that they will try and capture any area, Mm-hmm. and they'll maintain that area for some time till an international truce happens, and then it's like it's like a standstill situation. So that is what they have been doing have been doing pre 1962 also, and of course in the 1962 war. Presently also in the Galwan they wanted to do that, but they were thwarted. uh, in Aksai Chin, of course, Right. that is the area that they have captured. And courtesy our neighbor Pakistan, which has handed over the Sakshgam Valley to China. But considering what their policy is, India has been in a significant position to thwart that. Especially, we have been ramping our defense capabilities. So, especially the Daulat Beg Oldie runway that we have in Okay. the Ladakh area. So that has been a very big strategic shift point for not just for India, but in fact for China as well, because now we can deploy advanced fighters, troops, minimum amount of time, because we have the C-130J Super Hercules, which can land in that airfield. So I think China's perspective is that I think it's always going to be an India-China story or India-China conundrum in South Asia. I think we can talk more about China when we are going through other countries as well, because China has influence, technically has geopolitics influence all over the world. Coming next to Pakistan, so I think as you mentioned, economy is in tatters, Right. and nothing seems to be working for them. But somehow I think Imran Khan is going to come back. Really? Yeah. So I think they are in a position where Imran Khan might just come back, even though the military has always been the major player there in foreign policy. So there's a rule in Pakistan. I think most of your audience would know, but even if they don't, that generally, if in terms of foreign policy for Pakistan, it's not the civil government which handles it, especially for India. And for Afghanistan and Iran, it's actually their military which handles it. And of course, when we say military, it's the ISI. So they have a significant involvement there. So Pakistan per se, I think, is not a big threat unless we are going to be really concerned about their nukes. Like who is handling their nukes? So that's a concern, and that is one of the major reasons actually why they have been able to play that card for a very long time. Right. I think you might have seen in a lot of movies and read a lot of books where they always play this nuke card, through which they are able to get support of countries like US and other major Right. players, because everybody is concerned that it should not fall in the wrong hands. So as far as the diplomacy towards India is concerned, I think we have been passed through that era where we can have a conversation with them. Of course, I'm not saying that we should actually stop talking to them, because that would be more dangerous, not talking to them. But I think Why, sir? Why more dangerous? because then you don't exactly know what exactly is happening. I mean, even though you have back channel diplomacy, you have your agents, and everywhere you have information from other countries. But I think maintaining a dialogue is very important in diplomacy. I think generally when we see Dr. Jaishankar or even the Honorable Prime Minister mentioning Pakistan, that the blood and water cannot flow together, or terrorism and talks cannot go together. Right. I think that's at the highest level, but I think at the diplomatic level, there's always a constant engagement which is happening, which the general audience would not know, because that is very critical for maintaining, relations. And also, when we're talking about foreign policy, it is not the foreign policy of that present moment. It's also about maintaining the continuity for the future, because you never know what situation arises and what opportunity can
come, in the near future when we talk about the SWOT analysis. So I think this is one of the biggest opportunities that possibly, if we can have good relations with Pakistan, that would be good. But in the present time, seems very difficult. Then, of course, there are issues with Pakistan, not just with respect to border. Then there are issues which has been long pending, is the Sar Creek dispute. Right. Because it's a very significant area for natural reserves. So Sar Creek is something that is very, very important for India as well. And I think the negotiations kind of have really stopped over there. Not much has been really discussed. Then, of course, the one of the major concerns with India, especially with the Indian Ocean region, has been the EEZ, the exclusive economic zones. Right. So, So can you explain what is an exclusive economic zone? yeah, so the EEZ is basically an area for a country when you take from the land border, and if you go towards the sea, it is basically 200 nautical miles. Okay. So the country under which that area lies has the exclusive controls over mineral mining and the resources, and no other country in the neighborhood can actually do that. And even if India has that access, we have to get approval. For example, one of the critical mineral resource that is available in the Indian Ocean is the polymetallic nodules and Right. polymetallic sulfides. So for that, it's like you have to take an approval from an organization called as International Seabed Authority. It is headquartered in Kingston, Jamaica. So you just have to tell them that this is under India's EEZ, and they tell you that okay, it's kind of not disputed, and you can extract those minerals. But the problem is that it's economically very difficult because they are under very deep ocean, and then you need that technology, and of course infrastructure and a lot of capital is involved. But then India is kind of also building upon that. Right. So that is one of the biggest concerns in the Indian Ocean region, because recently when I come to Bangladesh, recently there was an award by the International Tribunal. So under the EEZ, so basically these territorial waters are divided by a UN convention called as UNCLOS. Yeah. Right. So the UNCLOS, or basically it's called as UN Convention on Law of Seas. That's the abbreviation. So they have their own tribunal. So in fact, if you talk about South China Sea, this has been the main game. Yeah, of China. I have to talk about the South China Sea. Like, why China is so possessive about it? Yeah, so we'll come to it. So Yeah. basically, so what happened with Bangladesh is that there was an area which was disputed because of as you know, we have the Ganga Delta, the Right, Ganga right, Brahmaputra Delta, and the The Teesta River. the Teesta River is also there. But then the Meghna Brahmaputra Delta, because of the shifting waters, the land border of India and Bangladesh is not very clear, especially around the deltaic region. So what happens is that there was a kind of overlapping of boundaries of India's EEZ and Bangladesh's EEZ. Now, what happened? Bangladesh appealed the decision, or basically they went to the court of the UNCLOS, and the decision actually went against India. Okay. But India, like a big brother, they did not appeal, and they said, okay, you take that portion. We are not really much concerned about it. Also because we wanted to maintain good relations with Bangladesh, and Bangladesh, especially the previous regime, has been very much pro-India. The Sheikh Hasina regime. What about the present one? Present one, it's kind of dicey because on multiple counts. Because firstly, Mr. Yunus, who has come to power, he's like an advisor to the government, but he's kind of the de It's a facto. temporary government, right? Yeah, but he's kind of the उनको कहते हैं de facto ruler type हैं. Okay. And what majorly has happened is what people say is the CIA, being involved in the Okay. coup. Because CIA जो था वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था with Sheikh Hasina. Sheikh Hasina. तो Sheikh Hasina के साथ problem क्या थी कि because of she was getting much more pro-India, and then of course because of her father's legacy, the founding father of Bangladesh, so always had good relations with India. On the other hand, her counterpart Khalida Zia, they are more much more pro-China and anti-India. So in fact, when the elections were happening, there were numerous reports by the Bangladeshi intelligence, even RAW and multiple agencies, that there were significant interferences by CIA, जो कि बांग्लादेश के elections को affect करेगा. But somehow they were not able to do that. Now what has happened is, which looks like a student revolution plus military coup, Right. which is kind of confusing right now. वो ऐसा लग रहा है कि it is more of done by CIA, and the other Western powers are involved. Because recently we saw a photo of Mr. Yunus being very close with Biden,
And Yeah, right. yeah, so almost hugging each Hugging other, each- yeah. hugging each other, and that became a very controversial photo. So having said that, I mean, Bangladesh is in a very tricky position. Actually, Bangladesh is one country that actually India needs to be really looking closely, because we don't want Bangladesh to be the next Iraq. To Oh, be honest, really? yeah, Like, yeah. can it be a next Iraq? Not Why do you say exactly. that? I said that because Iraq was so the reason why I kind of equated both of them is because Iraq, if you see the geography, when we go to West Asia, Iraq is sandwiched between two major powers, Right. right? So you have Iranians on the one side and you have Saudis on the other side, and Iraq was sandwiched, and the two competing powers in geopolitics. Now with Bangladesh, this has happened is we have China on the top and India on the other side, and then you have the Southeast Asia on the other side, and so it is kind of sandwiched in between. It And becomes a playground for two big powers. exactly, and then you have Western powers also, like Western, Uh-huh. interest of US also, trying to interplay there. So that is what I hope ki it does not become the next Iraq because of the instability. The reason is why. So one of the major reasons that people don't understand is why ISIS came into the picture is because of Iraq. Most of the fighters in ISIS are the disbanded army personnels of Iraqi army. And like, okay, this is controversial, but that US, there's a narrative that US was very prominent in the formation of ISIS. So So they invaded Iraq. That's pretty simple. They invaded Iraq via and then, proxy, which is ISIS. no. So they invaded Iraq. They hanged Saddam Hussein, and then proxy war, of course, is something that we will discuss. But then wherever US has invaded has never become stable. You take it Iraq, you take it Libya, Right. you take any other country for that matter, Afghanistan, Afghanistan for that matter. Afghanistan has been like the biggest black spot for US diplomacy. I think वो ऐसा होता है कि मतलब आप होते हैं ना, जैसे मतलब इफ आई गिव यू अ वेरी क्रूड एनालॉजी ऑफ इट कि कुछ काम करने गए, कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, और फिर एंड में रियलाइज हुआ बोरिया बिस्तर लेके भाई निकल लेते हैं कि अपने से तो नहीं हो पाएगा ये. तो दैट इज समथिंग दैट व्हाट हैपेंड इन As अफगानिस्तान. in Afghanistan, sorry to interrupt you, but Yeah, it is like in history we read that it is a graveyard of empire. Like Yeah. Britishers also Yeah. made a mistake. Nobody was able to actually Right. conquer them. The Pashtuns tribes, and they're very resilient people. Right. So nobody was able to conquer them. So it has always been the great game also. Yeah, as right, the exactly. area of great game countries. The Russians invaded, the US invaded, the Soviets earlier at that time, and then of course the Britishers also wanted. You have the Durrani Empire at that time, and they tried to take the Britishers somewhat were able to do it, but then of course now it's all Taliban controlled. So Afghanistan is something again which is. Is it a threat to India? Um, Or I can would. become? I think in totality, Afghanistan is not a threat to India. Firstly, we don't share a direct border in sense, though whatever border we have is actually in The the Wakhan Pakistan corridor The is the- Wakhan corridor is the access to the Pakistan occupied Right. Kashmir area, which is of course anyway our area. That has a very around very small 50-60 kilometer passage that gives access to India. So I think that way it is not a threat, but I'll tell you where the threat comes from. So when and this happened actually when US was leaving Afghanistan, तो हुआ क्या कि वहाँ पे जब तालिबान forces were trying to capture, so क्या होता है कि again this is also a very sandwich like situation, because if you see the Wakhan corridor ऊपर Central Asian countries हैं, right? So Tajikistan, Kazakhstan, all of those countries, and नीचे Afghanistan, and then इधर आप जाओगे east में Pakistan and India. What happened is that these areas now have become a playground for ISI camps, Okay. terrorist camps. तो होता क्या है कि जब तालिबान का प्रेशर वहाँ से आया, सो लॉट ऑफ दीज कैंप शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द इंडियन साइड. तो वो थ्रेट ऐसा है कि वहाँ पे एक तरीके से सेफ हेवन मिल जाता है इन पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट लोगों को इन दैट वखान एरिया, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि उतना इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान का. एंड ये जनरली क्या है, ISI आर्मी और इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है. जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, जैश ए मोहम्मद, ऑल ऑफ दीज हैव अ बिग स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर दैट एरिया. एंड ऑल्सो वाई, बिकॉज जो भी ओपियम कल्टिवेशन होता है आपका, गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन Golden, yeah, right. राइट, सो वो सारा वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है इलीगली, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तालिबान को वहीं से मिलता है. तो वो एक बहुत बड़ा एक्सेस है, बिकॉज जनरली पीपल कैरी इट वहाँ से, एंड देन मनी ट्रांसफर वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं. तो दैट इज़ अ थ्रेट पर से इनडायरेक्टली फॉर इंडिया, नॉट डायरेक्टली. बट देन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वाखान कॉरिडोर, आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट Central Asian countries, because it's kind of linked. Right.
इनफैक्ट इस बार के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज द Yeah, इम्पोर्टेंस ऑफ exactly. सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एंड विच वाज आई थिंक वाज लॉन्ग ड्यू, बिकॉज सेंट्रल एशिया से अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल कनेक्शन है हमारा, मुगल एम्पायर, ऑल यू नो all of them came from there, and we have these countries to the, you know, I remember it through a mnemonic, Tuzka, so it's like Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and then you have Tajikistan and other countries. So significant interests of India, historical connection है, cultural connection है, they are very pro Indians, उन्हें यहाँ का म्यूजिक बॉलीवुड बड़े फेमस है वहाँ पे, अब ठीक तो है, टूरिज्म भी बहुत promote हो टूरिज्म रहा है. बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है. इनफैक्ट यहाँ से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे अपने कैंपसेस खोल रहे हैं. नोएडा से ही काफ़ी सारी अभी यूनिवर्सिटीज़ आर मूविंग. अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समवन, सो दे आर ओपनिंग द कैंपस इन उज़्बेकिस्तान. एंड बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे मेडिकल टूरिज्म बहुत है वहाँ से, बिकॉज इंडिया एज यू नो हैज वन ऑफ द चीपेस्ट हेल्थ केयर्स. तो Even with Afghanistan, a lot of Afghan nationals I see, Syrian nationals as well. Saket में Max Hospital है, so there is a Syrian restaurant in front of the Max Hospital. I'll take this time to tell your audience कि जो नोएडा का जो ग्रेट नोएडा का क्रिकेट स्टेडियम है, that's the official home ground of Afghanistan cricket team. Right. So अफगानिस्तान के साथ तो खैर it's like a home वाली बात हो जाती है उन लोगों के लिए. So yeah, so I mean सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा है, क्योंकि अगर आप देखोगे, you know, these countries also have significant uranium reserves for our nuclear power plants. उसके अलावा दे आर काइंड ऑफ अ बफर फॉर अस फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत है उनकी. वैसे कंबाइंड मतलब इंडिविजुअली शायद उतनी स्ट्रेंथ ना हो, बट एज अ ब्लॉक 5 member नेशन अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर यू नो अर्स्टवाइल सोवियत स्टेट्स थे, तो रशिया के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं. बट अदरवाइज ऑल्सो आप देखोगे यू नो दिस सेंट्रल एशियन कंट्री, स्पेशली जो तजिकिस्तान है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. There are 2 air bases of India, Okay. which were Soviet era bases. One is called as Farkhor Air Base and other is called as Aini. So Aini and Farkhor Air Bases क्या है, वो Indian Air Force station रहती है वहाँ पे. So it's like a situation कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे तजिकिस्तान है. तजिकिस्तान के 2 एयर बेसेस इंडियन एयर फोर्स के पास हैं. सो इफ टुमारो लेट्स से पाकिस्तान वांट्स टू डू अ लिटिल हैंगी पैंगी, वांट्स टू अटैक इंडिया, तो उनको इधर से भी मार पड़ेगी, उनको उधर से भी मार पड़ेगी, बिकॉज वहाँ से इट विल हार्डली टेक 5-10 minutes फॉर देम टू रीच पाकिस्तान. Okay. So Indian Air Force has stationed modern aircrafts in Aini and Farkhor Air Base. तो उनके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट, इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी गए थे उसके रिन्यूअल के लिए ही. Okay. So those are very two important strategic bases of India that are there in the Central Asian region. So strategic geopolitical point of view से important है ही, cultural point of view से भी है, mineral resources भी हैं, and also they kind of help us in balancing the ties with China and Russia. Right. I mean, sir, मैं वही देख रहा हूँ, the beauty of podcast that in a very brief discussion we touched upon so many important points. Like if for the UPSC aspirants, like it's a gold mine of information. We touched upon Teesta River, we touched upon the Wakhan corridor as a mapping point, Central Asian countries. So I think this is how, you know, podcast can be a very great medium for preparation also, for value addition. Right. So in this regard, like I have to shift from international relations to security issues, because like we were talking, the one concept which came to my mind was theater command. Right. Like we were covering geography, like from north to south. So do you think theater command, the establishment of a theater command will actually help us better tackle the neighborhood in terms of security? So theater command, firstly let me tell you what theater command Right, is for that will be the great. audiences. So basically क्या होता है, जैसे you have 3 warfares, you have air, land and sea. So होता क्या है, integrated theater command में you have a combined strength of all the forces. और अभी हमारे इंडिया में ज़्यादा इसके बारे में बात इसलिए भी हो रही है बिकॉज अंडमान निकोबार में इस्टेब्लिश किया जा रहा है इनफैक्ट, एंड वी आर यू नो वर्किंग ऑन मल्टीपल थिएटर कमांड्स की एक साथ इंटीग्रेट करके कैसे दे कैन कोऑर्डिनेट. एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इज़ कि रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है. एंड वाई इट इज़ बीइंग फैसिलिटेटेड इज़ बिकॉज नाउ वी हैव द Chief of Defense Staff आपके रहते हैं, so CDS is there who can coordinate has a supervisory view over all the forces. So what it does is basically, of course, एक तो क्या है कि आप देखिए कि India is the only country which has a nuclear triad. उस कॉन्सेप्ट के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो न्यूक्लियर ट्रायड क्या है सर, एक बार वो भी एक्सप्लेन करेंगे. न्यूक्लियर ट्रायड मींस दैट इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की फैसिलिटी है फ्रॉम ऑल द 3 अगर आप देखेंगे domains.
So we can fire nuclear weapons from the Indian Air Force. Planes के साथ कर सकते हो, आप submarine के साथ कर सकते हो, आप from your destroyer ships कर सकते हो, and of course you have On land-based systems also. So we have been able to, because INS Arihant was the one of the major ones जो जिससे न्यूक्लियर ट्रायड एस्टैब्लिश एंड ऑफ कोर्स नाउ वी हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2 हो गए हैं अब. सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन रीजन, डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए. तो अगर आप उसमें थिएटर कमांड की बात करेंगे, सो वी डिवाइड सेक्टर्स, जैसे ईस्ट इंडियन ओशन, वेस्ट इंडियन ओशन. तो वो थिएटर कमांड्स क्या है कि दीज आर areas or corridors divided from the perspective कि यहाँ पे how all the three forces can work in tandem together and how efficiently we can kind of not just tackle threats but we can also कैसे preempt कर सकते हैं before it even happens. Right, sir. So that was a very interesting discussion and a very comprehensive discussion on the neighborhood strategy. Now let's take a flight to Kyiv. Right. What is the update on the Ukraine-Russian conflict? मतलब सर ये खत्म ही नहीं हो रहा है. So what is this issue in brief and what is the update on it? वो खत्म होगा भी नहीं. See, the point is कि keeping the ego aside of everybody involved in this, I think the problem is that एक तो NATO forces have to also understand, जो NATO countries हैं, European Union and European countries हैं, कि there's a limit to it where you can push somebody, right? Okay. So they tried to push Putin and they thought कि he will back down. तो वो वहाँ पे ईगो आ गया उनका. तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि नाउ यू सी नाउ अ रीगेन्ड मोमेंटम ऑन द वॉर. सो अभी रिसेंटली यू माइट हैव नोटिस, न्यूज़ में आ रहा है कि रशिया इज कैरिंग आउट मोर अटैक्स इन यूक्रेन नाउ डेज. बिकॉज अभी क्या हो गया था बीच में थोड़ा देयर वाज अ लल पीरियड बिकॉज you cannot sustain a war for such a long time. Right. and you need resources, men, in terms of logistics भी आप देखो, weapons देखो. अब रशिया की इकोनॉमी इज ऑल्सो फेसिंग बिग चैलेंज एंड यूक्रेन की तो ऑलमोस्ट एक तरीके से आप देखिए खत्म ही हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वॉर. सो बट देन द एडवांटेज द यूक्रेन हैड इज दैट द यूरोपियन इंटरेस्ट्स वर फ्यूलिंग द फायर. तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि दैट इज वाई वेयर यू सी द रोल ऑफ इंडिया बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप देखिए ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम की एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, राइट, जो एक एक्टिव वॉर में कंट्रीज एंड सच बिग कंट्रीज लाइक रशिया इज इन्वॉल्व and he has met both the heads of the state and Zelensky से तो फिर मिले हैं अभी कल. वही सर मुझे यही तो- पूछना था that the prime minister meets Zelensky right and the national security advisor meets Putin. right So what exactly is India doing? Are we really playing a mediating role? So this is basically what we call as a very important term in the global diplomacy. It's called as strategic autonomy. Right. Right. So what India basically says is कि भाई देखो हमारा अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, और हम ना ही किसी के साथ अलाइंड है और अलाइन होंगे भी नहीं. हमारा इंटरेस्ट सर्वोपरि है, ठीक है. इंडिया का इंटरेस्ट जो होगा हम उसमें काम करेंगे. अब इंडिया का इंटरेस्ट ऑफ कोर्स ये नहीं है कि हम वॉर को सपोर्ट करें. दैट इज व्हाई आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो पुतिन को बोल सकता है कि ये समय वॉर का नहीं है ऑन अ पब्लिक स्टेज. Right. नोबडी कैन इवन डेयर पुट सेइंग दैट टू पुतिन. तो वो उन्होंने बोला एंड वो इसीलिए बोला बिकॉज देखो इंडिया हैज ऑलवेज बीन वन कंट्री जो फेमस है कि हमने कभी किसी को ऊपर कॉन्कर नहीं करा. लोग आए हमारे यहाँ पे, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, बट वी नेवर Right. वेंट फॉर अ कॉन्क्वेस्ट. एंड हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली, G20 का थीम ही वही था. तो वी आर अ पीस लविंग नेशन. आई वांट पीस, जो हम नेबरहुड में भी बात करते हैं कि वी वांट पीस बट वी डोंट वांट इट टू बिकम पीसेस. So from that perspective, what happened, वो आई थिंक वो अजीत डोभाल जी का जाना was taken by a lot of media कि अरे देखो अजीत डोभाल जी को भेज दिया है, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पाए हैं. So you know what happens in media. So see, the point is that Ajit Doval ji is in a position who has a lot of experience, and it is not something कि प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, because प्राइम मिनिस्टर तो अभी जस्ट मिल के आए पुतिन से. So sending one of his very close confidant and somebody who is very close to him to Putin was a signal to not just Putin को तो बताने की जरूरत नहीं, because he knows what kind of relations are there with India, but it was more of a signal towards the West कि बॉस ऐसा नहीं कि मैं जेलेंस्की से मिल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं जेलेंस्की या यूरोप का प्रो हो गया हूँ. ठीक है, रशिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. सो सेंडिंग somebody who is in second in command to the PM to personally brief Putin was a very clear message sent to Europe and somebody who is supporting Ukraine. And Ukrainian president से 2 बार मिलने का मतलब ये था कि we are trying whatever we can in our ability
की सिचुएशन जो है उसको मीडिएट करें. सो इंडिया हैज ओपनली सेड दैट वी विल मीडिएट इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट. एंड आई थिंक वो बैक चैनल डिप्लोमेसी, ऑफ कोर्स वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट बैक चैनल लेवल पे तो बहुत सारे डिस्कशंस हो ही रहे हैं टू स्टॉप दिस. बट देन व्हेन यूरोप is in the position जब वो नहीं समझना चाहते, if they are hellbent कि हमें पुतिन को नीचे करना ही है, so of course Putin is also not gonna back down ना. Right. Right, sir. So, अब इसमें sir the other perspective which I am reading in newspaper also, and quite a lot of people are talking about it on Twitter as well, that this war in Europe will actually bring Russia and China closer, and that is not good for India. So, what is your perspective on this? See, Russia and China have always been close, especially अगर हम past 3-4 सालों की बात करें, स्पेशली अगर आप देखेंगे जैसे अभी तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके पहले देवर ऑल्सो सिचुएशंस बन रही थी वहाँ पे जहाँ पे ड्यूरिंग ट्रम्प्स टाइम ऑल्सो एंड प्रीवियसली बिफोर दैट इंडिया वाज मूविंग अ लिटिल मोर क्लोजर टूवर्ड्स यूएस. और बट वो एक जो वहाँ पे एक सिग्नल गया था वो, इफ यू रिमेंबर देयर वाज 4-5 years back, there was an agreement which was signed for S-400 missiles. So they are one of the most advanced, missiles, interceptor defense missiles that are present. तो वो US बहुत टाइम से चाह रहा था कि वो they could sell some of their equipments to India. So वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. So they basically CATSA एक agreement है, उसको जो लॉ है उसको लेके काउंटरिंग अमेरिकन CATSA, okay. So CATSA उन्होंने पास किया, बट दैट उसका उन्होंने एक्सेप्शन दिया इंडिया को. सो बेसिकली व्हाट इट सेज इज कि इट्स अ बेसिकली देयर कांग्रेस का लॉ है उनका कि कोई भी कंट्री जो एंटी यूएस कंट्रीज के साथ बिजनेस नहीं कर सकती. तो उसमें ऑफ कोर्स रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर दोस कंट्रीज जिनके साथ नहीं कर सकते, बट इंडिया को वेवर मिला हुआ है. तो S-400 जब लिया तो वी काइंड ऑफ सेंट अ सिग्नल टू रशिया ऑल्सो कि नहीं भाई, इवन इफ यू आर वर्किंग विथ यूएस इट डज नॉट मीन कि हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे. सो द प्रॉब्लम इज कि चाइना एज यू नो हैज वन ऑफ द बिगेस्ट चेक बुक उनके पास है. और जब आप रशिया को आइसोलेट कर दिया है वेस्ट ने, तो रशिया के पास भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं. दे हैव ऑप्शंस लाइक नॉर्थ कोरिया, चाइना जो इमीडिएट नेबरहुड में, एंड लाइक इंडिया. तो रशिया एंड आप अगर आप देखोगे ब्रिक्स में तो एनीवे वी आर टुगेदर. सो रशिया इज ऑल्सो देयर, चाइना इज ऑल्सो देयर, एंड देयर आर मल्टीपल फोरम्स. ठीक है, इनफैक्ट SCO में आप देख लो, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में. इनफैक्ट ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि एक ही ऐसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग में इंडिया पाकिस्तान साथ में ट्रेनिंग करते हैं. इट्स कॉल्ड एज रैट्स, रीजनल. हाँ, इट्स कॉल्ड एज रीजनल एंटी टेरर जो इनका ट्रेनिंग होती है. सो वो SCO के अंदर होती है, एंड वो इकलौती ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें इंडिया पाकिस्तान के फोर्सेस साथ में ट्रेनिंग करती हैं. Otherwise, of course, you can't see that. So, China को भी कोई चाहिए. It's like basically you scratch my back, I scratch your back वाला situation है. Right. सर आपने चेकबुक की बात करी. So this is exactly what checkbook diplomacy is, which is in news. Right. So sir, from this one conflict, let's move to the other conflict in the other part of the world, and that is the West Asia, the eastern shores of the Mediterranean Sea. Right. वैसे तो the Mediterranean is a very beautiful place, but eastern shores are having a bloodshed. Hamas, they attacked Israeli on their territory, and Israel retaliated. Now Hezbollah has also joined in, and it's like a war party going on there. Pagers, they are blasting. So not just pagers, there were news that goats were even blasted. Oh my god. So like, what is this issue in West Asia? And like, is there any connection between the two issues? And like, what is the Indian interest in West Asia? So I'll take a little time to explain the origins of it. Where does it start, Sure. and then how it converts into a proxy war. And it's very important for the audience to know कि कौन players हैं और इनका interest कहाँ पे aligned है. I think that is something that And the geography also, if you can, geography also, yeah, and also उस perspective से भी कि media में बहुत सारी चीजें ना biased आती है. So somebody like because I am saying this might be controversial, but ठीक है, all eyes on Rafah, like was very popular. But वहीं पे आप देखो कि what you are supporting, that's okay, what your opinion is, but it's very important for the audience कि उन्हें पूरी information हो चीज़ों के बारे में. ठीक है, so when you're supporting Rafah, then you should also be supporting something else. So coming to the history of it, see this area जो आपका Middle East जिसको हम लोग कहते हैं, why first it is called as Middle East, because जो यूरोपियंस हैं उनमें हमेशा से ये नोशन था कि वर्ल्ड इज वो वर्ल्ड के सेंटर में है.
तो उनके जो ईस्ट में लाई करता है और थोड़ा मिडिल में था, बिकॉज कंप्लीटली ईस्ट वाज जापान एंड यू नो ऑल ऑफ दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो उनके जो थोड़ा ईस्ट में था वो उसके मिडिल में आ गया, मिडिल ईस्ट। और ये जो रीजन है यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे अरब मुस्लिम्स डोमिनेटिंग रीजन्स था। अब यहाँ पे भी एज वी मेंशन्ड अर्लियर की दिस वाज अ प्ले ग्राउंड फॉर ऑल दीज यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, तो चाहे वो फ्रेंच हों चाहे वो ब्रिटिशर्स हों। तो ये जो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चालू होता है वो एक्चुअली में आप देखोगे इनिशियली इट वाज एन अरब स्टेट ओनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देन ब्रिटिशर्स आए और फ्रेंच आए, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसको उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट और फ्रेंच मैंडेट बोल के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे कंट्रोल करेंगे। देन दे रियलाइज कि ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, सो देन दे साइंड एन अग्रीमेंट, साइक्स पाइकॉट अग्रीमेंट है, जिसके बाद डिसाइड हुआ कि भाई वी विल एस्टैब्लिश एक पैलेस्टीनियन स्टेट पहले से था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम जूविश लोगों को एक यहाँ पे जो है एक कंट्री बना के अलग से देंगे। एंड उसको थोड़ी स्ट्रेंथ इसलिए भी मिली बिकॉज जायनिस्ट मूवमेंट चालू हुआ था, एंड स्पेशली आफ्टर द हिटलर्स होलोकॉस्ट जो हुआ अगेंस्ट द जूस, तो वर्ल्ड के जहाँ सारे जो जूस थे वो यहाँ पे आने लगे। एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्होंने बोला ही था कि भाई हम आपको एक कंट्री बना के देंगे, तो दिस एक इन्फ्लक्स हो गया इनका लोगों का यहाँ पे। तो अब क्या है, ये ऑब्वियसली वहाँ पे इट स्टार्टेड एज अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यूएन के लिए सबसे पहला जो टास्क था वो यही था कि आप इजराइल पैलेस्टाइन इशू की बाउंड्री डिसाइड करिए। दैट वाज द फर्स्ट टास्क गिवन टू देम, जिसका सोल्यूशन वो आज तक नहीं दे पाए हैं। इसीलिए बहुत क्रिटिसिज्म भी है, यूएन रिफॉर्म्स आर इन न्यूज़ एवरी डे। या लाइक सो आप मतलब आप देखिए कि वो एक प्रॉब्लम अभी तक ये लोग सॉर्ट नहीं कर पाए। सो हैविंग सेड दैट, तो ये सिचुएशन जो है अब क्या है कि व्हेन दिस जूइश स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट लाइक यू नो लाइक्ड बाय द पैलेस्टीनियंस, देन वाज अदर neighboring countries like Syria and Egypt were involved. तो वो तो आपकी ऑडियंस वैसे भी जानती होगी, बट आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल अबाउट दोस अरब यू नो इजरायली वॉर एंड 6 days वॉर। बट देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट द हमास अटैक, सो हमास अटैक एक्चुअली हैपेंड ऑन द डे ऑफ रिमेम्बरेंस, जो इजरायलीज और जूइश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है, उसको यौम किपुर बोला जाता है। दिस इज अ वॉर। So this was basically this is one of the holiest days for it's like a festival for them, which is the holiest day for Jewish. Yom Kippur उसको बोलते हैं। तो जब ये 1967 में एक इजरायली अरब वॉर हुआ, उसको रिटेलिएट करने के लिए पैलेस्टीनियंस और बाकी अरब फोर्सेस ने योम किपुर के दिन ही अटैक किया था। ओके। तो हमास ने भी उसी को ही लेके योम किपुर के दिन ही इस बार इन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक किया था। 7 अक्टूबर को होता है वो, और उस दिन क्या था, छुट्टी का दिन था, ठीक है, एवरीबडी वाज हाँ छुट्टी का दिन था, पार्टीज भी बहुत हो रही थी वहाँ पे, जो आपने वीडियोस देखे हॉरिफिक वीडियोस। सो वो यौम, एक तो वो सिग्निफिकेंस हो गया वहाँ पे कि इन्होंने यौम किपुर को ही रिटेलिएट करने के लिए एक तरीके से वहाँ पे इन्होंने हमला किया। एंड दूसरा क्या है कि आई थिंक हमास जो है उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हाउ डिड हमास कम इनटू द पिक्चर। तो जब ये इजराइल पैलेस्टाइन इशू कॉम्प्लिकेट होता चला गया, मल्टीपल ऑस्लो अकॉर्ड साइन किए गए उनके पीस अग्रीमेंट के लिए, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी पैलेस्टाइन में उसको पीएलओ बोला जाता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासिर अराफात उनके बड़े फेमस लीडर थे। ही ट्राइड टू काइंड ऑफ ब्रिज द गैप कि किसी तरीके से, दो ही वॉज अ रेडिकल लीडर बट देन थोड़े से वो कंजर्वेटिव हुए बीच में, ही ट्राइड टू ब्रिंग अ सोल्यूशन, बट उनका असैसिनेशन हो गया, जो माना जाता है कि ही डाइड इन स्लीप, विच सम पीपल ब्लेम इज ऑन मोसाद। बट देन तो वो क्या हुआ, बिकॉज पीएलओ बिकेम अ लिटिल न्यूट्रल, तो उसको काउंटर करने के लिए एक नया पॉलिटिकल और कह सकते हो मिलिट्री विंग आया, जिसका नाम था हमास एंड फतेह। तो हमास एंड फतेह दो पार्टीज हैं जो एक्सट्रीमिस्ट एक आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं, एंड दे बिलीव कि डायलॉग से बातचीत नहीं चलेगी, दे बिलीव इन रेडिकल एक्शन। तो ये हमास का जो कंट्रोल है, उनका मेजर कंट्रोलिंग एरिया इज वेस्ट बैंक, जहाँ पे ये सारा इशू होता है, ठीक है, वेस्ट बैंक टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन एंड टुवर्ड्स द गाजा स्ट्रिप। सो वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये सारे एरिया में इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वेस्ट बैंक में पीएलओ है, लेकिन पीएलओ की जगह इस समय फतेह का ज़्यादा कंट्रोल है। नाउ हमास कंट्रोल्स द इंटायर एरिया ऑफ वेस्ट गाजा स्ट्रिप। सो ना गाजा के साथ अगेन प्रॉब्लम ये है कि गाजा इज लाइक अ लैंडलॉक्ड जेल, ठीक है, इधर से लैंड है, उधर से पानी, कहीं नहीं जा सकते आप। अब ये क्या करते हैं, गाजा से रॉकेट्स फायर करते थे पहले, तो वो तो चलो आयरन डोम वाज एबल टू कैप्चर फ्रॉम इजरायली साइड से। अब इन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, तो इस बार दे प्लान्ड दिस अटैक। नो दिस वाज समथिंग विच वाज बेसिकली ट्रिगरिंग, कि आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दी वाली बात कर दी। एंड कहीं ना कहीं इसमें आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उनका भी चूक था बहुत बड़ा, उनके इंटेलिजेंस का फेलियर है ये,
वो मोसाद का भी फेलियर था, उन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि ये इस लेवल का भी अटैक, क्योंकि इन्होंने भी 3 लेवल से अटैक किया था, लैंड से भी हमला किया एंड एयर से भी, थ्रू माइक्रोलाइट्स दे अटैक्ड। तो वो कहीं ना कहीं उनका फेलियर था, बट नाउ मोसाद इज टेकिंग इट बैक एक एक करके, चुन चुन के। बट अगर आप देखोगे जो अभी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू मैंशन अबाउट दीज ब्लास्ट्स, उनके वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो रहा है, उनके पेजर्स में ब्लास्ट हो रहा है, दिस नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग जस्ट नाउ। एक्चुअली में अगर आप देखोगे, ये जो पेजर जिस कंपनी ने बनाया है, ये 10 साल पहले बने थे, और ये बनाया ही इन्हीं के लिए गया था। सो ये प्लानिंग 10 साल पहले हुई 10 थी? साल की पहले की प्लानिंग थी, जो अब एग्जीक्यूट हो रही है। ये कंपनी ने बनाया है, इसीलिए था। ये तो आप नॉर्मल डिवाइस में देखोगे, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो इस लेवल का तो ब्लास्ट हो ही नहीं सकता ना उसमें। एक ब्लास्ट होगा, चलो ठीक है, कुछ डैमेज हो गया आपकी बॉडी को, बट द लेवल ऑफ ब्लास्ट दैट इज हैपनिंग, तो उसकी रिसर्च की, उसमें पाया गया कि दिस वाज एक्चुअली प्लान्ड वेल इन एडवांस फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज लाइक दिस। सो अब आप देखो कि मोसाद किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है एंड किस लेवल की इजरायली इंटेलिजेंस की प्लानिंग है। बीच में इट वाज अ बिग setback of course for them. So now comes the picture of the other players. Now you talked about Hezbollah. Yeah. So now you have to understand who is Hezbollah. So Hezbollah is an extremist wing of Lebanon. Now they are a Shia group. तो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि ये सुन्नी शिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है, बिकॉज दैट इज हाउ द ग्रेट गेम एंड प्रॉक्सी वॉर हैपेंस इन द मिडिल ईस्ट. Iran is Shia, Saudi Arabia is a Sunni faction. Absolutely. So Shia and Sunni are the two major sects हैं आपके इस्लाम के, एंड उनकी जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में इस चीज़ को लेके कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर कौन है. Okay. ठीक है, विल नॉट गो इनटू दैट रिलीजियस डिटेल्स. तो उसको लेके इनके बीच में हमेशा से डिस्प्यूट रहा है. अब ईरान जो है वो लीडर माना जाता है वर्ल्ड में शिया मुस्लिम्स का. ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है. इनफैक्ट जब आप देखेंगे इंडिया में भी या किसी कंट्री में ईद होती है तो 2 अलग अलग डेज पे होती है. ठीक है, क्योंकि शियाज के लिए अलग दिन है उसका अगला दिन, और सुन्नीस के लिए अलग होता है. और सुन्नी लीडर जो है वो डी फैक्टो आपका है सऊदी अरेबिया, बिकॉज ऑफ मक्का एंड मदीना बीइंग द 2 होलीएस्ट प्लेसेस वहाँ पे. वर्ल्ड की 3rd मोस्ट होलीएस्ट जो साइट है इस्लाम की, वो है आपकी जेरूसलम में. दैट इज द अल-अक्सा मॉस्क. और वहाँ पे और भी 2 इंपॉर्टेंट साइट है. ठीक है, आपकी एक जूस के लिए है और आपके जो है जो क्रिश्चियंस है उनके लिए भी है. सो तीनों, अब कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाता है कि वाई जेरूसलम बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द 3 कि वो तीनों साइट अगल बगल हैं और जेरूसलम कोई देना नहीं चाहता. जेरूसलम पे ही सारा कॉन्फ्लिक्ट भी काफी है. सारा कॉन्फ्लिक्ट उसी को लेके है. इनफैक्ट इसीलिए वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, बट यूएस ने बोला है कि नाउ यूएस की एम्बेसी, उन्होंने यूएस एम्बेसी एक्ट पास करके उन्होंने ये रिकग्नाइज कराया कि नाउ जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल एंड नॉट टेल अवीव. Okay. तो वो अगेन इज अ जियोपॉलिटिक्स का पार्ट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिजबुल्लाह, सो हिजबुल्लाह इज अ शिया डोमिनेटेड ग्रुप. नाउ व्हाट हिजबुल्लाह डज इज कि वो ईरान के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ईरान उनको पैसे, फंडिंग एंड वेपन देता है. और पूरे लेबनान में आप देखोगे, अच्छा लेबनान की भी ना थोड़ी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है. सो वहाँ पे क्या होता है कि द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे पोजीशन रिजर्व रहती है. Okay. तो प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, जो स्पीकर की पोस्ट होगी वो क्रिश्चियन होगा. ठीक है, Okay. तो वहाँ पे इस बेसिस पे डिवीजन है. अच्छा, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अभी इस समय गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं है. वहाँ पे सारा कंट्रोल हिजबुल्लाह करता है. हिजबुल्लाह ही हैज़ ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, हैज़ द मिलिट्री विंग ऑल्सो, एंड फॉरेन पॉलिसी में भी कंट्रोल करते हैं. तो हिजबुल्लाह नॉर्थ से प्रेशर डाल रहा है इजराइल के ऊपर. इफ यू सी द ज्योग्राफी, सो नॉर्थ इज लेबनान, बीच में इजराइल, और इजराइल के अंदर इधर वेस्ट बैंक, एंड टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन इज द गाजा स्ट्रिप. Gaza Strip, right. तो ऊपर से हिजबुल्लाह प्रेशर डाल रहा है, इधर से आपका हमास एंड फतेह, मेजरली अब हमास ही है. और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएं इजराइल के, जहाँ पे आपका सी ऑफ गलीली है, जो उनका फ्रेश वाटर सोर्स, ओनली फ्रेश वाटर सोर्स है डेड सी के जस्ट ऊपर. उधर है आपका सीरिया. अब सीरिया इज ऑल्सो प्रो पैलेस्टाइन, बिकॉज सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम नेशंस हैं. उनके जस्ट इधर जो वेस्ट बैंक के आप राइट में जाएंगे इज जॉर्डन. नाउ जॉर्डन क्या है, थोड़ा न्यूट्रल कंट्री, बट है वो भी प्रो पैलेस्टाइन ही. Right. ठीक है. और जब आप इधर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द गाजा स्ट्रिप की तरफ जाएंगे तो इजिप्ट है, पूरा साइनाई पेनिनसुला आ जाएगा आपका. तो ये सारे कंट्रीज शुरू से इन्वॉल्व थे इजराइल के ऊपर अटैक करने में, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द जूइश स्टेट जो इस्टेब्लिश किया गया. अब यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर कैसे चल रहा है, अब हमास फतेह प्रो पैलेस्टाइन, हिजबुल्लाह प्रो पैलेस्टाइन बिकॉज ऑफ बीइंग इस्लामिक कंट्री. अब भले ही वो ईरानियन सपोर्ट हो, क्यों ईरान सपोर्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ईरान का सबसे बड़ा एनिमी इजराइल. Israel. Okay. अभी आपने देखा होगा 2 बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं. ठीक है, इजराइल के जो रेवोल्यूशनरी ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, विच इज देयर सीक्रेट सर्विस, उनके हेड को असैसिनेट किया इराक में थ्रू अ ड्रोन, एंड देन अनदर असैसिनेशन हैपेंड. तो ईरान को ये चाहिए कि भाई मेरे को इजराइल को तबाह करना है, इजराइल को चाहिए कि मेरे को ईरान को तबाह करना है.
तो बीच में ऊपर आ गया हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला क्या करता है, यहाँ से अटैक कर रहा है। तो दैट इज व्हाई नाउ यू सी द बॉम्बिंग्स दैट आर हैपनिंग और द अटैक्स व्हिच आर हैपनिंग वाया इजराइल इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ लेबनान, जहाँ पे हिजबुल्ला डोमिनेट करता है। तो वो एक वहाँ पे प्रॉक्सी है। सो ये तो इस एरिया की प्रॉक्सी हो गई। अब इसी को अगर आप थोड़ा एक ब्रॉडर विजन पे लेके जाओगे, सो इफ यू एक्सपैंड द मैप नाउ इन द मिडिल ईस्ट रीजन, सो यू हैव सऊदी अरेबिया। नाउ सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, और फॉर दैट मैटर उनका प्रॉब्लम क्यों है इज ईरान एज अ कंट्री, ठीक है, दे बेसिकली ट्राई टू रेसिप्रोकेट ऑन द बेसिस ऑफ ईरान। सारी प्रॉब्लम कहाँ से चालू होती है, देखो सऊदी अरेबिया कुछ नहीं था, जब एक डेजर्ट था। जब 1930s में ना वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई, तो 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्टैब्लिश किया गया। ये ट्राइब्स थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्स से लड़ मड़ के उन्होंने क्या किया, एक जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब थी वो बन के रूलर वहाँ के अल साउद फैमिली, जिसके अभी मोहम्मद बिन सलमान इज द क्राउन प्रिंस जो रूलर है। अब तेल जैसे मिला तो उस समय यूएस को तेल चाहिए था, तो यूएस ने सबसे पहले जाके ट्रीटी साइन कर ली और उन्होंने कहा हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो सऊदी अरेबिया बिकेम अ मेजर प्लेयर देयर। ऑफ कोर्स तेल पूरा ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल बिकॉज दे आल्सो रियलाइज पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो अब सऊदी अरेबिया ना कंसिस्टेंटली स्टेबल रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वहाँ पे ऐसा डिस्ट्रप्शन हुआ नहीं। ऑन दी अदर हैंड एग्जैक्ट ऑपोजिट ईरान में हुआ। ईरान इज अ वेरी बिग कंट्री, बट ईरान के साथ प्रॉब्लम ये रहा, वो भी यूएस के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन वहाँ पे हमेशा डिस्टेबलाइजेशन रहा। तो जो टू कट द द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है जो ईरान में हुआ जिसने पूरा हिला के रख दिया उस रीजन को, इज द 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब वो हुआ क्यों था, क्योंकि उसके पहले जो रूलर थे मोहम्मद रेजा शाह, वो CIA पपेट थे। उनकी सीक्रेट आर्मी थी, रस्कर्स एंड सावक्स, ये सब जो जैसे रस्कर इंडिया में आप बोलते थे कि हम लोग सीक्रेट आर्मी, वैसे सावक्स वहाँ पे होते थे। तो वो क्या करते थे कि कोई भी कुछ भी बोलता तो उनके खिलाफ तो असैसिनेशन कर देते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो सऊदी अरेबिया को रियलाइज हुआ कि भाई जो वहाँ हुआ वो यहाँ पे भी हो सकता है, दैट कैन हैपन ओवर हियर, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ किंगडम, दे वर ऑल्सो अ किंगडम बिफोर दैट। अब वहाँ पे क्या हो गया, इट बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक, तो इनका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। एंड देयर हैव बीन मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय CIA एंड अदर एजेंसीज आल्सो, जो ये बोलती हैं कि ईरान जो है वो कर रहा है एक्सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया डिस्टेबलाइज हो। तो इराक बेचारा बीच में फंस गया। तभी मैंने बोला इराक, आई डोंट वांट बांग्लादेश टू बी द नेक्स्ट इराक। सो इराक इज बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड देन ऑफ कोर्स द फॉरेन प्लेयर्स केम इनटू द पिक्चर। तो सऊदी अरेबिया इज ऑलवेज नर्वस कि ये जो है हमारे लोग तख्ता पलट ना कर दें। सो दैट इज व्हाई नाउ यू सी दैट मोहम्मद बिन सलमान क्यों अप्रिशिएट हो रहे हैं, बिकॉज ही इज नाउ ब्रिंगिंग वेरी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। विमेन कैन नाउ ड्राइव, देयर कैन बी नाउ म्यूजिक प्लेड इन रेस्टोरेंट। सोचो ये अलाउड ही नहीं था पहले। तो बिकॉज दे डोंट वांट कि वो बिल्कुल जैसा डिक्टेटरशिप वाला रूल ईरान में हुआ, जिसकी वजह से नाउ व्हाट दैट कंट्री हैज बिकम शुड नॉट हैपन इन सऊदी। तो इसके चक्कर में क्या होता है, वो दोनों कभी डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं थ्रू देयर प्रॉक्सीज। दैट इज वेयर द वर्ड प्रॉक्सी वॉर हैज कम टू द पिक्चर। जैसे हम लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते थे, तो अब हमारे बिहाफ पे कोई और लड़ रहा है, तो उन्होंने इराक को लड़ा दिया ऐसे ही। ठीक है, अब क्या है, अब डायरेक्टली अब इराक तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। अब किसको लड़ाएं, तो हिजबुल्ला हमास को फंडिंग देते हैं, उधर से सीरिया बशर अल असाद है, ठीक है, उधर से फंडिंग चल रही है। तो ये है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है येमेन में। Yemen, right? I was about to come to that वहाँ पे जो हूदी रिबेल्स हैं, हाँ। they are now also attacking Israel. Right. Recently वो भी न्यूज़ में इस वजह से ही थे। Right, So right. like what is this येमेन का गेम? सो देखो येमेन का पहले तो आपको देखो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के परस्पेक्टिव से, कि ऊपर सऊदी अरेबिया है, इधर येमेन है, ठीक है, वेरी क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ अफ्रीका। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक रीजन है जहाँ पे ये बब चार अल मंडेब कंट्रीज हैं। स्ट्रेट। एग्जैक्टली, सो 4 कंट्रीज है वहाँ पे, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, ये सारी कंट्रीज है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। सो दे आर थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट जिनको बोलते हैं, बिकॉज वर्ल्ड का मेजर कार्गो, मैरीटाइम कार्गो Right. शिपमेंट वहीं से पास होता है। तो अब येमेन को पता है कि वहाँ के रेबल्स को पता है कि वी आर सिटिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। येमेन का प्रॉब्लम ये है कि येमेन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो अथॉरिटी है, दैट इज रूल्ड बाय सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। बट जो रेबल्स हैं उनके, वो हैं हुथी, दोज आर शियाज। तो वो प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। Right. अब ईरान क्या है कि वो ऑब्वियसली हुथीज को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, उनको ड्रोन्स दे रहा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उन्होंने, हुथी रेबल्स ने सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे ड्रोन अटैक किया था। हाँ, या राइट। राइट, सो अरमाको अरामको, या Aramco, अरामको कंपनी, सो द Aramco. बिगेस्ट ऑयल रिफाइनर जो है उनका। सो दोस ड्रोन्स वर सप्लाइड बाय ईरान। Okay. And recently what they also did was they carried a very significant attack near the Red Sea,
और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट को कैप्चर कर लिया था, अल हुदैदा पोर्ट को। Okay. अब अल हुदैदा क्या है कि वो वहीं पे है, आपके बबल मंदेब स्ट्रेट के पास है। Mhm. अब कोई भी वर्ल्ड का जो वहाँ से शिप जाएगा, सो आपका समझ लीजिए 75 to 80% जो शिपमेंट जाता है मैरीटाइम का, जो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, वो वहीं से जाता है वाया रेड सी Okay. होते हुए टुवर्ड्स सुएज कैनाल। तो वो पूरा खत्म हो जाएगा वहाँ से। तो दे ऑक्यूपाइड दैट एरिया, बड़ी मुश्किल से सऊदी अरेबिया ने उसको वहाँ से उनको दे वर एबल टू कैप्चर इट अगेन। सो वो अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर। तो ये एक सिनेरियो है जो यमन में, एंड एनीवे आप देखोगे दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, जस्ट टू ऐड ऑन टू इट, कि व्हाई देयर इज अ कंट्री इन अफ्रीका व्हिच इज वेरी क्लोज टू यमन, जिबूती इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Right. बिकॉज वहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज, उनके मिलिट्री बेसेस हैं इस समय। सो चाइना इज बिल्डिंग अ बेस, यूएस हैज अ बेस, और इतनी सी कंट्री, छोटी सी आप मैप पे देखोगे शायद मिले भी ना आपको, वहाँ पे खो जाएगी वो। Right. But it has become one of the most significant countries. In fact, when Ramnath Kovind, the former president, when he got elected, the first country he visited was Djibouti. Right. So this is the, and because India has significant interest there, क्योंकि हमारा सारा जो ऑयल शिपमेंट है या जो यूरोप के साथ हम जो ट्रेड करते हैं वो सारा वहाँ से जाता है। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट इस पे मैंने बहुत क्लोजली काम किया हुआ है इन G20. सो just to add to what this area has, so you might have heard about the India Middle East Economic Corridor. Right. So Yes. I was a part of the team that was working on it. Okay. So अभी हुआ क्या, because of this Israel Palestine issue that has been stalled, Right. क्योंकि वो क्या करता है, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक्सेस दे रहा था to European countries, and so when I was in the ministry में G20 का जो assignment था, that was for logistics only, and so one of our key task was identifying these multimodal corridors, कि Okay. जो कोविड में सप्लाई चेन जो हमारा अफेक्ट हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ कोविड सब चीज़ डिसरप्ट होगी, तो क्या हम ऐसे कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ से शिपमेंट जा सके एंड देन रेल के थ्रू जा सके। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 का ऑफिशियल डिक्लेरेशन में अनाउंस हुआ, वो इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें आप देखोगे इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द गल्फ कंट्रीज ऑल्सो, इट इज़ अ विन विन फॉर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, US लेड है, इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है उसको, तो इंडिया को एक और एक्सेस दे रहा था, स्पेशली व्हेन वी कम टू चाबहार, Mm-hmm. तो वो चाबहार का भी एक ऑल्टरनेटिव है। Right. So to summarize till now, if we talk about West Asia, there is a triangle which is forming. At Right. the top is Saudi Arabia. Right. Then we have the Iran and Israel. Iran and Israel are in direct conflict Right. in the present time. Right. And in all of this, there are small players like what is happening in Yemen, then Lebanon, Hezbollah, Houthi rebels, and all of that. Right. The thing is, what is India's interest? Like you talked about the India Middle East Economic Corridor. Now, my specific question is, what we want from that area? What should, like, if we talk about, if there is a discussion going on in the foreign policy corridors for India, what will be the most ideal situation from the point of view of India? So that's a good question. See, in fact, that is what is something that India Middle East Economic Corridor was meant for. Ki, see, India was one of the first countries, in fact, to support Palestine state. Okay. In fact, हमारे इजराइल के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं थे 1992 के पहले तक, ड्यूरिंग द जवाहरलाल नेहरू जी एरा एंड द कांग्रेस एरा। सो द पॉइंट इज कि हमारे, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी कम टू द टॉपिक ऑफ UN रिफॉर्म्स, कि वेयर इंडिया इज एक्चुअली पोजिशन राइट नाउ। आप देखिए कि वर्ल्ड में जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मीडिएटर तो इंडिया ही है। अभी हमने रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे, कोई और कंट्री है ही नहीं जो मीडिएट कर रही है। इट्स इंडिया के साथ भी पुतिन मिल रहे हैं, इंडिया के साथ जेलेंस्की भी मिल रहे हैं। जेलेंस्की ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ बिग एंड अ पावरफुल कंट्री, दे शुड यूज देयर इन्फ्लुएंस। Again, he is saying it publicly. So that shows the stature India has. Vishwaguru. And he is also the voice of the global south. Yeah. And at the same time, आप देखिए यहाँ पे कि अब आप देखिए Prime Minister Modi, how smart he is. He goes on a visit to Israel. But during that visit, he does not visit Palestine. But once he goes to Palestine, he does not visit Israel. So that sends a very clear message, जो हम लोग use करते हैं word de-hyphenation. It's called as the policy of de-hyphenation, कि हम कोई भी इशू में मल्टीपल इशूज को मिक्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और ये इसी के केस में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि हमारा इंटरेस्ट इजराइल के साथ भी है, हमारा इंटरेस्ट पैलेस्टाइन के साथ भी है, बिकॉज पैलेस्टाइन बीइंग अ मुस्लिम नेशन एंड वी आर ऑलवेज अ पीस लविंग कंट्री,
we want significant support of all the Muslim nations in the world, especially if you are looking for a permanent position in the UN Security Council, because उनका बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे, वोट बैंक है. They have the biggest organization called as OIC, Organization of Islamic Countries. वो UN के बाद second highest number of members हैं उनके. तो वो एक पर्सपेक्टिव है. दूसरा, हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है वहाँ पे. पैलेस्टाइन को हम शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं. तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखिए इकोनॉमिक टर्म्स में है, ठीक है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना. अभी स्पेशली आप देखें टेक्नोलॉजी के टर्म्स में सम ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट है इंडिया के मिडिल ईस्ट में. अभी सऊदी अरेबिया गए थे प्राइम मिनिस्टर, तेल अवीव में है, इसराइल में है, इनफैक्ट पैलेस्टाइन में भी बात चल रही है. मैन पावर, सो अ लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग हैपेंस फ्रॉम इंडिया, चाहे वो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हों, चाहे वो वाइट कॉलर्ड वर्कर्स हों. सो इंडिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इंडिया वांट्स टू नेविगेट दिस दिस चैनल, अगर आप देखो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन. और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर उस वे में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखोगे वहाँ पे एक और भी चाबहार पे भी काम थोड़ा थोड़ा धीमे बढ़ा है, बिकॉज बीच में थोड़ा चाइना का इन्फ्लुएंस आ गया था वहाँ पे. So Chabahar port is in Iran. Chabahar is in Iran, right? So, but then again, it also provides. So, Chabahar is basically a part of a bigger project called as INSTC, International North-South Transport Corridor. So, wo again gives the access to European markets for India. And then, so if you see कि why these are all important, अभी हमारा सारा ट्रेड सुएज कैनाल से आता है. अभी सुएज कैनाल में आपको पता है ब्लॉकेड हो गया था, एक बहुत बड़ा शिप टेढ़ा सा फंस गया था वहां पे जाके, एवर गिवन शिप जो था हमारा. तो अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो फिर आपके देखो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया. इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल हु डिपेंड ऑन गवर्नमेंट टू हैव इन्फ्लेशन एट सच हाई लेवल्स. तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या ऑल्टरनेट रूट हो सकते हैं. तो एक रूट था चाबहार वाला जिसपे काम चल रहा है. दूसरा रूट था इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि अभी अगर आप जाओगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू गो थ्रू अफ्रीका, ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड फ्लाइट इज नॉट फीजिबल. मतलब जो मोस्टली कार्गो जाता है वो मैरीटाइम ही है 90%. सो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिडिल ईस्ट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रीजन फॉर इंडिया. दैट इज वाई व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उनका पहली पॉलिसी ये थी कि हम इसको लुक ईस्ट करते रहते हैं, इसको लुक मत करो, इस पे काम करो, लेट्स एक्ट ईस्ट एंड देन लुक ऑल्सो टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वेस्ट को तो देखते ही नहीं थे हम ना पोटेंशियल पार्टनर की तरह. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. So, sir, before we move forward, I want to also talk about your experience. Like you mentioned that you were also playing a very important role in these talks, and you also participated in the G20 summit. So, can you talk us about your role in the G20 summit? So I was a part of the Trade and Investment Working Group under the Ministry of Commerce and Industries. So that's one of the tracks. So there are different you can say themes under which the G20 negotiations or your departments function. So my focus area was trade and logistics. So I closely worked with international organizations like OECD, UNESCAP, UNTACD, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे. सो इट वाज वेरी engaging assignment, and also I got a lot to learn because मेरे को एक जनरल फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस था, बट आई डिड नॉट हैड दी वेरी स्पेसिफिक, आप कह सकते हो, चीज़ें कुछ पता थी. बट जब मैंने उस पर काम करना चालू किया, सो इट हैड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क ऑल्सो, बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट पेपर फ्रॉम स्क्रैच, टॉकिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, and then finally coming up with a possible set of 4-5 very high value deliverables की जो outcome आ सकता है, then negotiating it with these countries. So I think that was a very enriching experience. In fact, I remember कि when you are at the negotiating table, तो literally fight ही होती है. मतलब I just want to share this because that was a closed door negotiation. Of course, I can't share the specifics, but I can give you a sense of the माहौल, the atmosphere कैसा होता है. So because India is the chair, so we are sitting on the chair side में, इधर US and बाकी countries हैं, इधर countries हैं. So what happens in international diplomacy कि हमें लगता है कि वो ना बड़ा ऐसा रहता होगा कि बड़ा tense माहौल है. ऐसा नहीं होता. Everybody is chilling, and of course there are some serious discussions also happening. But just to give you an example कि कैसे diplomacy actually works. So for example, let's say कि हम लोग किसी लाइन पे negotiate कर रहे हैं और वो आके फंस गया. अब उस पे US नहीं मान रहा है because probably it's pro Russia. बट इंडिया के लिए वो इम्पॉर्टेंट है. तो व्हाट वी डू इज कि वी मैसेज साउथ अफ्रीका, देन वी मैसेज ऑस्ट्रेलिया, एंड देन वी मैसेज यूके. ठीक है, उनको हम मैसेज पास करते हैं कि इस पॉइंट पे यू कैन मे बी पुट अ लिटिल प्रेशर ऑन यूएस. ओके. एंड विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस. उस पे फिर ये तीनों कंट्रीज वो कर देते हैं, अपना हाईलाइट कर देते हैं कि इस पे वी डू नॉट एग्री.
So now US has to choose whether to let this one go or let this one go. So this is how international diplomacy and negotiations take place, and that was a very interesting thing that I saw. You have friends also, like you have these people who are diplomats and head of their divisions, and then आप उनको message कर रहे हो कि just यार इसको pressure डाल US को इसके ऊपर. तो This is like corporate politics only. yeah, so it's not politics. It's basically you're securing the interest of your own country. So it was very fascinating to see. And then Chinese, playing always their smart card. And China को कुछ भी बोलो तो China बोलता था कि we are not really sure about this. We will have to talk back to our head back in Beijing and then get back. तो उन्हें हर चीज में ना वैसे ही बोलना है कि हमें कुछ interest नहीं है. Then of course Japan is pro India, तो Japan कुछ और बोलता था. So this was something that was very fascinating, and then I got to meet some of the highest level people at the highest level. Very enriching experience. And then the I think the biggest takeaway for me, or what you can say, is the achievement which I feel really proud about, is that not being from UPSC, not being from the Indian Foreign Service, negotiating on behalf of the country. Right. And that is some experience that I think वो ऐसे experience पाने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता था. ठीक है. So I think I left one of my in a way very high paying profession just for that assignment, because that was something that I would not let go. Because I remember my boss, additional secretary in the ministry, said ki, what you're doing, most of the foreign service officers don't even get to do. You should be paying me for that. So he said it very jokingly. You see, I think the universe conspires. Something you really want, it Yeah. conspires and it leads Yeah. you to that place. Yeah. Right. So and I built very good relations with some of, so a lot of these diplomats are now my friends, and so I was mentioning the biggest achievement was that learning, and most importantly that it became a part of an official declaration. So what I wrote, so I basically designed 10 principles, and they are now the global principles or how world trade will function. Oh, wow. So it is called as digitalization of international trade. So I designed 10 principles on which basis the future trade will be digitalized using blockchain and technology. So Okay. that we built from scratch. And this is for the first time that India, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि IT super power है, तो we thought why shouldn't India be doing something this? तो हमने ये सजेशन दिया है कि ये 10 principles होंगे जिसके बेसिस में फ्यूचर में आपका इंटरनेशनल ट्रेड को डिजिटलाइज किया जाएगा. एंड इट वाज Okay. ऑफिशियली देन साइंड बाय बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एवरीबॉडी. सो आई थिंक वो मैंने अपने घर पे फ्रेम करा के रखा हुआ है एज अ सोवेनियर. Wow. That is very interesting. Yeah. So you talked about Biden. So let's talk about the US presidential elections Yeah, now. yeah. I mean, Biden is out of the race. Yeah. And I think the verdict of the US citizens, it will play a very significant role, right? And particularly on the issues we have just discussed. Yeah. So what do you think about the US presidential elections? Who is winning and what will be the likely consequences? सो आई वुड वांट टू ना बड़ा इसका थोड़ा फनी सा मैं आंसर देता हूँ. मेरी नीस है, वो एक का शो आता है पेपा पिग करके ना, वो बहुत ज़्यादा देखती थी. तो उसमें एक मडी पडल होता है. ठीक है, मडी पडल तो वो कीचड़ है बेसिकली. तो वो कीचड़ ही हो गया, दलदल हो गया इस समय द US इलेक्शन, व्हाट इट सीम्स लाइक. बिकॉज सी of course Donald Trump is in a very good position, but Kamala Harris also has a very good chance. And जो मुझे लग रहा है इट्स गोना बी अ वेरी क्लोज रेस, बिकॉज सम ऑफ वही होगा कि एक दो स्टेट्स जो होंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे. बिकॉज द प्रॉब्लम इन US इज कि जो इमेज है डोनाल्ड ट्रम्प का, सो डोनाल्ड ट्रम्प का सपोर्ट इज मेजरली दोज वर्किंग क्लास पीपल, दोज ब्लू कॉलर वर्कर्स, बिकॉज ही हैज दिस पॉलिसी ऑफ गेटिंग अमेरिका बैक एंड I'll work for industries, और मैं taxes कम कर दूंगा, all of those pro poor या pro working class measures, which of course has a very very wide appeal. On the other hand, कमला हैरिस के साइड पे अगर आप देखोगे जो डेमोक्रेट्स हैं, सो कॉर्पोरेट लॉबिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी, एंड द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ कोर्स विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट मुझे मेजरली जो लगता है US इलेक्शंस को लेके कि एक्चुअली जो मेजर पावर प्लेयर्स हैं ना, जिनको हम किंग मेकर्स बोलते हैं, वो हमें लगता है ये लोग हैं, बट एक्चुअली वो पीछे से कोई और ही है. ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल सामने भी नहीं आते होंगे, आपको पता ही नहीं है वो कौन है. ठीक है, तो आप लोग ये वर्ड सुनते रहते होगे, इल्यूमिनाती एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड बट दैट्स एक्चुअली ट्रू. सो अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, देयर आर 3-4 फैमिलीज एंड कंपनीज हु ओन द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब you might have heard about a company or basically a family, Vanguard and BlackRock. ठीक है, BlackRock I have so heard, these are big organizations, और इल्यूमिनाती जो आप ये ग्रुप सुनते रहते हो उनके बारे में, सो और रॉथस्चाइल्ड के बारे में आपने सुना होगा शायद.
तो it's true because these people have their hands full in almost everywhere you go in the world. So US elections का result क्या होगा, मतलब keeping all conspiracy theories aside, probably these people know it better. But अगर मैं geopolitics के point of view से बोलूँ, so or from the perspective of India, I think India के strategic interests में it is much better if Donald Trump comes into the picture. Okay, why? Because Kamala Harris के साथ एक तो issue क्या है कि she will be a puppet. Because as you now have seen, Barack Obama and Michelle Obama पीछे से पूरा push कर रहे हैं. और कमला हैरिस का खुद का कोई स्टैंड ऐसा पर्टिकुलरली क्लियर अभी तक आया नहीं है. एंड वट एवर स्टैंड शी हैज शोन मेजरली इज नॉट वेरी प्रो इंडिया. Donald Trump का क्योंकि because he's tried and tested. We have had a very good tenure of Donald Trump and he has a bonding with Prime Minister Modi. Even though उनके कुछ ऐसे radical से statements आ जाते हैं कि इंडिया टैक्स की चोरी करता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में जो है हमें फायदा नहीं होता है. सब्सिडी को लेके एक GSP regime था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो उन्होंने हटवा दिया, तो उसको लेके स्टेटमेंट आता रहता है. बट सी अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन. ठीक है, कमला हैरिस से यही उसमें डिफरेंस है. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और उसने पैसा खुद अपना कमाया है, तो उसको पता है बिजनेस कैसे चलता है. Right. और उसको पता है बिजनेस इस समय इंडिया के साथ ही चल सकता है. बिकॉज जहां पे वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी आके जहां पे बिजनेस करना चाहती है, तो मैं थोड़ी लूज आउट करूंगा. देखो, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इलेक्शंस अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट विल बी मेड व्हिच विल बी टू अपील द वोटर्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही विल डू दैट थिंग. और अगर आप वैसे देखो, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट यूएस की हिस्ट्री में जिनके टाइम पे कोई एक्टिव वॉर नहीं था. द ओनली थिंग दैट ही डिड वाज असैसिनेट ईरान के जो ड्रोन असैसिनेशन हुआ था. बट अदरवाइज दैट हैज बीन द गाय हु हैज बीन एबल टू ब्रिंग ट्रूप्स बैक फ्रॉम अफगानिस्तान. नॉर्थ कोरिया को ले आया टेबल पे बात करने के लिए. करेक्ट. who can do that. And most importantly, when we are talking about Middle East, एक important चीज हमें समझनी चाहिए कि Donald Trump is the only guy who got this peace deal done, Abraham Accords between Israel and Saudi Arabia and all of these Arab countries. तो इसीलिए तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है. बिकॉज नाउ इसराइल का भी इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया का भी इंटरेस्ट है, फ्रांस का भी इंटरेस्ट है, यूके का भी इंटरेस्ट. नहीं तो दे वर नेवर अलाइन टुगेदर. और वो करने का क्रेडिट, जो एब्राहम अकॉर्ड्स का क्रेडिट है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को पास ही जाता है. तो दैट इज व्हाई आई सी दैट the potential of working much more greater together. And also I'll tell you why. If Donald Trump comes into the picture, then probably Russia-Ukraine war might stop. Okay. Because वैसे तो इलेक्शन रिगिंग को लेके सवाल उठा है, but Donald Trump enjoys good relationship with Putin also. Okay. So that way I think it is going to be a little bit of win-win situation for all of us. But Kamala Harris आएंगी तो I think it's gonna be pro European stand. और ये लोग फ्यूल ही करेंगे यूरोप जो है थ्रू दैट रशिया यूक्रेन वॉर. Right. So, sir, we were talking about the US elections, then we talked about Middle East, and obviously we are talking about India. So, in this context, I want to talk about I2U2 initiative. So, what is this initiative? What are the countries? And, like, what is the, like, is it something like Quad? Or, like I want to know about this initiative. So, it's interesting that you brought about Quad because अभी recently Quad summit हुआ है, and Quad is more of a, अगर आप देखोगे, is more of a military and strategic alliance. But I2U2 on the other hand is not perspective in per se a military alliance. So basically I2U2 constitutes your India, Israel, UAE and US. Now, why these countries? Of course, because India plays a very important role in this region. UAE को लाने का सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए था because यूएई अगर आप देखो इज अ मेजर प्लेयर इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है, एंड यूएई एक ऐसी कंट्री जिसका मिडिल ईस्ट में भी प्रॉक्सी वॉर वाले सिचुएशन में अगर आप देखोगे थोड़ा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है. बिकॉज एक तो इकोनॉमिक सुपर पावर है वो भी अगर आप देखोगे, एंड जनरली एंजॉयज वेरी गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. तो इट इज बेसिकली टू शिफ्ट फोकस towards whatever is happening in Middle East towards more pro-development. Okay. And of course, थोड़ा उसमें strategic angle भी है, like coordination between security agencies. But the idea is कि एक US बड़ा player आ गया, Israel वहाँ पे एक जो जिसके साथ conflict थी. तो when an Arab country is is in tandem or is in hands with Israel, तो उससे क्या होता है, it gives boost to the other countries also कि अच्छा ठीक है, because UAE is also a Sunni dominated country. तो वो अब अच्छा जब ये I2U2 आया या फिर जब एब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुए, जब हम बात कर रहे थे, तो सऊदी अरेबिया ने उसको सेलिब्रेट नहीं करा. ठीक है, बट अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया वाज काइंड ऑफ न्यूट्रल आल्सो इन दैट वे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फ्यूचर में ये सब चीज़ें जो हैं दे विल हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट
oil based economy से अब they will have to move towards renewable and और tech की अगर हम बात करें, so Israelis are very advanced that way, so they would also want to work with some look out for some alliances and partners in that scenario. तो that way I2U2 का बड़ा important role है in bringing stability to this region. Okay. Right. So we started from India, the neighborhood, then we went to Ukraine, Russia, West Asia, now US. Let's talk about South America. Usually people don't talk about South America, but I think it is a very critical landmass, particularly for India's quest for critical minerals. Right. So I want to talk about the importance of South America in the context of the mineral diplomacy. See, अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका इंडिया के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राजील के साथ हमारे काफ़ी रिलेशन है, ब्रिक्स आप देखें, एंड G20 की प्रेसिडेंसी इज करंटली विद ब्राजील एंड वी हैव एंजॉयड वेरी गुड रिलेशंस विद ब्राजील. अर्जेंटीना के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज, सो वी वुड अप्रिशिएट कि जो वहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है, विच इज़ द ABC कंट्री, द अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले, they have some of the highest reserves of lithium in the world. Though India में भी ये discovery हुई है, we have now the 6th highest that way. अगर आप देखोगे जो रियासी region of जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे reserves मिले हैं. But क्या है कि वो अभी हम लोग mine नहीं कर पा रहे हैं उसको, because अभी वो they are prospectives, अभी वो discover हुए हैं. It will take time for us to capitalize on that technology. तो वो जो lithium triangle है, वहाँ पे जो lithium निकल रहा है, उसके लिए इंडिया हैज साइंड अ वेरी सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट. हमारा एक PSU है, उसको काबिल बोलते हैं, खनिज विदेश लिमिटेड करके. तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो वहाँ से लिथियम लेंगे. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इफ यू टॉकिंग अबाउट फेम, जो स्कीम चल रही थी हमारी मूविंग टुवर्ड्स ई व्हीकल्स, तो लिथियम आयन बैटरीज जो हो गई, चाहे वो किसी भी डिवाइस के लिए हो गया, ड्रोन्स के लिए हो गया, या तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दैट अग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा अर्जेंटीना की इकोनॉमी, बिकॉज नाउ हावियर मिली जो उनके नए हेड हैं, सो ही इज़ वेरी प्रो कैपिटलिस्ट, तो उन्होंने काफ़ी रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आए हैं. तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है इंडिया के साथ काम करने की. तो एंड चिली इज़ एनीवे वेरी फेमस फॉर कॉपर. तो कॉपर हर जगह, हर छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल, इनफैक्ट इस माइक में यूज़ हुआ है, तो हर छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपका कॉपर यूज़ होता है. तो वो चिली के साथ अग्रीमेंट है हमारा. सो साउथ अमेरिका के साथ एक तो ये भी है फ्रॉम द मिनरल पर्सपेक्टिव. एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे स्पेस के लिए बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारा अग्रीमेंट है विद दीज कंट्रीज, बिकॉज जब आप एटाकामा डेजर्ट की तरफ जाएंगे, चिली इधर जो है, सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे क्लाउडीनेस सबसे कम रहता है. सो दीज आर द एरियाज वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े आप देखेंगे रेडियो टेलीस्कोप्स हैं, और इंडियन साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन, सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत क्लोजली काम करता है वहाँ पे. तो ये भी एक एंगल है जहाँ पे इंडिया का काफ़ी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट लाई करता है. एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ अ लिंकिंग कंट्री टूवर्ड्स, आप देखोगे अंटार्कटिक में हमारे रिसर्च स्टेशन हैं. सो दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक स्कीम भी है जहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स, सो द एक्सपोर्टर्स गेट सब्सिडीज. एंड रिसेंटली अगेन आई गॉट अ चांस टू work with some Latin American countries के bureaucrats had come for a visit. So as a part of good governance initiative, so we highlighted, so people to people exchange भी बहुत ज़्यादा important है, जो generally at the bureaucratic level भी होता है. Okay. So yeah, I mean, South America is very, like, particularly very important, and we should like focus on it. And particularly UPSC aspirants, they kind of ignore South America. Africa, coups, civil wars, disease outbreak. This is what we generally hear about Africa in the news. But a land of opportunity, big market, right? But heavy competition. Every major power in the world is having an eye on Africa. In this context, what should be the India strategy? And first of all, what is our interest, particularly related to Africa, and what should be our strategy to counter China, which is also playing their checkbook diplomacy in Africa? So yeah, what should be our strategy? So see, Africa has always been known as the sleeping giant. ठीक है, वो उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, बट हमेशा उसका एक एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है. Now as far as India's interest is concerned, again it's multifold, right, with other a different set of countries, because इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है and अलग अलग countries हैं, अलग अलग interests हैं. But if I have to highlight a few important ones, so firstly, as you mentioned that China की checkbook diplomacy है.
Now we can never counter that because we don't have that much of capital and we cannot just do this kind ki aap humse itne paise le lo and then we kind of own that country. But what India enjoys and what India can capitalize in these countries is the goodwill that that we are serious about what we are doing. And also this goes in a very long way क्योंकि अगर आप देखोगे जो इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम बीच में हुई थी और ये मेजरली होती है कि वी स्टार्ट अ लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स बट वी डोंट एग्जीक्यूट देम फुली, वो कंप्लीशन नहीं हो पाता उनका, इट काइंड ऑफ लूजेस मिडवे चला जाता है, हमारा फोकस कहीं शिफ्ट हो जाता है. तो उस वजह से क्या होता है, देन दोज कंट्रीज काइंड ऑफ लुक फॉर अदर पार्टनर्स लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज. तो आई थिंक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इंडिया नीड्स टू डू इज फिनिश ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स स्पेशली ऑन टाइम. एंड अगर कुछ कमिट किया है तो वी शुड ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि उसको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं. And then, of course, maintain and build on the goodwill relations that we have. We have so many scholarships and so many students यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, and we also send a lot of the students. So if I talk about economic interest, तो mineral reserve तो है ही वहाँ पे, ठीक है. उसके अलावा आप देखेंगे कॉफ़ी है, we import a lot of pulses from those countries. And then if you go towards the south, we have defense agreements with countries like Mozambique. अभी रिसेंटली हमने पेट्रोल वेसल्स दिए हैं. इनफैक्ट आई थिंक महिंद्रा थार्स भी दी गई हैं उनके जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर है. सो द थिंग विद एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज एक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है जिसपे इंडिया जापान आर वर्किंग टुगेदर टू अगेन फोकस ऑन अफ्रीका. सो अफ्रीका हैज ऑलवेज बीन अ फोकस कंट्री फॉर इंडिया. इज जस्ट दैट कि वहाँ पे आप देखोगे एक इंडिया अफ्रीका समिट होता है हमेशा, एंड अभी उसका 4th एडिशन इज पेंडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आई थिंक वो एक चीज़ है जिसपे इंडिया को बहुत जल्दी काम करना चाहिए. इनफैक्ट अफ्रीका में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इट्स कॉल्ड एज पेलिंदाबा ट्रीटी, कि वो न्यूक्लियर मटीरियल्स नहीं देते किसी कंट्री को अगर उन्होंने एनएसजी साइन नहीं किया हुआ है. उसके अलावा आप देखोगे कंट्रीज लाइक रवांडा, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बीच में कंट्रीज हैं, युगांडा, ये बड़े इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट भी करने गए थे. रवांडा, ही हैड गॉन टू रवांडा. रवांडा इसलिए फेमस है बिकॉज आप देखिए रवांडा जो है इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे फीमेल पार्लियामेंटेरियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशंस में हैं. सो अ लॉट ऑफ लर्निंग्स कैन टेक प्लेस. ऑफ कोर्स टूरिज्म तो खैर है ही वहाँ पे. सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिबूती है on towards the Bab el-Mandeb side, and south में आप जाओगे so you have Mozambique, Madagascar, ये सारी countries, they are very important. Seychelles is very important. In fact अगर आप देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI किसी अफ्रीकन कंट्री से आता है, that is Mauritius. $64 billion का FDI आता है इंडिया में. Right. Because it is routed through it, because it's a tax haven. So multiple interests हैं, but the only thing is that we have to stand by our commitment. That is going to help in building further relations, because हम लोग चाइना को पैसे के मामले में टैकल नहीं कर पाएंगे. बट व्हाट वी कैन ओनली टैकल इज गुड, बिकॉज देखो बाकी कंट्रीज को अब समझ में आ गया भाई चाइना क्या करता है, जो श्रीलंका में और बाकी कंट्रीज में उन्होंने किया, म्यांमार और बाकी में, कि भाई पैसा ले लो, कंट्री उधार पे चल रही है. वो जो पाकिस्तान के साथ हाल है कि सीपैक तो उन्होंने बना दिया और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका आ गया. राइट. तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हम उसको बिल्ड अपॉन करें. So China is doing the checkbook diplomacy in Africa, but what it is doing in its immediate neighborhood, like why is it so possessive about South China Sea? And then in relation to South China Sea, what is this Indo-Pacific strategy? Like Indo-Pacific, earlier it was the Pacific, and it is usually said that it was Trump who added that word Indo to this Indo-Pacific to include India and the overall Asia in this context. So what is, I think there are three major questions in this. What is this Indo-Pacific game? Is it related to the South China Sea? And in this context, the importance of maritime diplomacy, which is in like limelight. So see, first talking about South China Sea, and then I think broadly I'll zoom out. So if I go to the micro level, the issue of South China Sea. Now South China Sea का issue क्या है कि वो जो area है South China Sea का, it is heavily dominated by very critical energy resources, petroleum, fisheries and all of those areas. अब वहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो EEZ है, मल्टीपल कंट्रीज का वहाँ पे क्लैश करता है. तो इट्स वियतनाम, इट्स ब्रुनेई, इट्स मलेशिया, इट्स फिलीपींस. अब चाइना का ये कहना है कि हमारे हिस्टोरिकल मैप के हिसाब से हमारा ये एरिया होना चाहिए, इतना EEZ मेरा होना चाहिए. Okay. तो उसमें हो क्या रहा है कि वो उतने सारे EEZ जो हैं वो क्लैश कर रहे हैं विद ऑल ऑफ दीज कंट्रीज. अब ये सारे कंट्रीज से लगे UNCLOS ट्राइब्यूनल में, क्योंकि चाइना मान नहीं रहा था. ऊपर से चाइना क्या कर रहा था बड़ी स्मार्टली, जो अभी भी वो कर रहा है, वो वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है.
Right. स्कारबोरो शोल एंड ये सारे एरियाज हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे कोरल आइलैंड्स उससे आसपास दे आर बिल्डिंग मल्टीपल आइलैंड्स बना रहा है। और होता क्या है कि वहाँ से अगर कोई शिप जा रहा है तो उनकी जो नेवल शिप्स होती है पीएलए की, चाइनीज़ पीएलए की, वो उसको थ्रेटन करती हैं कि ये हमारे एरिया यहाँ बताओ। तो इस वजह से ऑल ऑफ दीज कंट्रीज मेंट टू दिस UNCLOS ट्राइब्यूनल, और उस ट्राइब्यूनल ने क्या किया कि उसने चाइना के खिलाफ अवार्ड दिया। बट दैट इज व्हाट चाइना, क्लासिक चाइना है, चाइना किसी की बात तो सुनता नहीं अपने आगे। तो चाइना सेड भाई हम तो नहीं मानते, तुम कौन हो UNCLOS। तो चाइना ने अपना वही कि हम जो करेंगे इट्स माई वे और द हाईवे, दे कंटिन्यू दैट वे। अब इसमें इंडिया के लिए एक बोनस ये हो गया कि नाउ दीज कंट्रीज हु गॉट, जिनको नाराज हो गए चाइना के इस एटीट्यूड से, स्पेशली वियतनाम, दे नाउ बिकेम वेरी क्लोज टू इंडिया। दैट इज व्हाई नाउ यू सी दैट इंडिया का वियतनाम के साथ ब्रह्मोस का BrahMos. अग्रीमेंट है। Right. राइट, और अभी वियतनाम की बहुत हाई प्रोफाइल विजिट हुई है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वाज देयर, एंड अभी पीयूष गोयल जी भी गए हुए थे। तो हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड इकोनॉमी, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है उनका। इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज वियतनाम। तो वो इंटरेस्ट हमारा वहाँ पे बढ़ गया। तो एक तो ये साउथ चाइना सी की वजह से हुआ, क्योंकि ये सारे लोग परेशान हो गए चाइना के बिग ब्रदर एटीट्यूड की वजह से। अब ना उसको जब आप थोड़ा जूम आउट करोगे अब जैसे ही आप थोड़ा और बाहर जाओगे तो ईस्टर्न साइड में ताइवान आ जाएगा थोड़ा आपका। अब ताइवान का अलग इशू है, बिकॉज चाइना से इसकी हमारी कंट्री है। ताइवान परेशान है, ताइवान वांट्स वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, इनफैक्ट है ही, एंड दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब इंडिया का फोकस जा रहा है सेमीकंडक्टर पे, वी वांट टू बी द नेक्स्ट बिग हब। तो ताइवान के साथ काफ़ी कोलैबोरेशन, और वो चाइना को पसंद नहीं आ रहा कि ये इनके साथ क्यों जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि जब अभी आप देखना ये होगा, अभी जब दशहरा होगा या दिवाली होगी, तो जो ताइवान की जो स्टेट मीडिया है वो फुल पेज ऐड निकालती है ऑफ लॉर्ड श्री राम किलिंग रावण। और वो रावण में कहीं ना कहीं वो अर्ग करना चाहते हैं, दिखाते हैं कि चाइना को कैसे इंडिया इज काउंटरिंग। तो ताइवान के साथ हो गया। नाउ अब इसमें इशू एक ही होता है, जो पैसिफिक का एंगल आ जाता है कि पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो हो गया, एंड देन इंडिया और पैसिफिक का लिंकेज। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट आया था, जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे थोड़ा और बढ़ गया। अच्छा, उसमें क्या होता था कि चाइना का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो मैरीटाइम सिल्क रूट, दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और ऊपर से जो उनका जो सिल्क रूट जा रहा है ऊपर से जो लैंड बेस्ड है, और बाकी कि इंडिया को वो कैसे सराउंड करेगा इंडियन ओशन रीजन में। अब उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने बना दिया डायमंड नेकलेस, जिसमें वियतनाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सागरमाला। तो सागरमाला तो इस तो सागर बेस्ड डेवलपमेंट, एक है Okay. डायमंड नेकलेस। Okay. डायमंड नेकलेस में क्या है कि वो जो चाइना की नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ टाई अप करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। वियतनाम इज वन ऑफ देम जो पार्ट ऑफ इट, Okay. मंगोलिया हो गया, एंड तो उसको काउंटर करने को बोलते हैं डायमंड नेकलेस थ्योरी। अब चाइना इसलिए परेशान है क्योंकि चाइना इंडियन ओशन में जाता है अपनी सबमरीन्स को लेके, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एरिया है, मैं यहाँ पे फ्रीडम में ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, जो इंडिया भी बोलता होना चाहिए। बट पॉइंट ये कि वो सारी चीज़ें कोवर्टली कर रहा है, और वो ये बोल रहा है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया का कोई रोल नहीं है पैसिफिक में। अगर आप देखोगे पैसिफिक रीजन में लाई नहीं करता। तो वहाँ पे यूएस के साथ कोलैबोरेशन हुआ, और फिर ये एक पेपर आया कि भाई देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंडो पैसिफिक। मतलब किसी भी कंट्री को यहाँ से अपना जो नेविगेशन में कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बट चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी में किसी को नहीं जाने देता, एंड इट लाइज एट द वेरी क्रिटिकल जंक्चर इन द मिडल ऑफ द इंडो पैसिफिक। तो चाइना इस चीज से भी नाराज है कि इंडिया ने इंडो पैसिफिक की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया है। सो इंडिया नाउ सेज दैट इंडो पैसिफिक लाइज फ्रॉम अफ्रीका टिल द एंड ऑफ पैसिफिक। Okay. चाइना सेज इट इज ओनली इन द पैसिफिक। And I think S. Jaishankar sir, he has also talked about the overall Indo-Pacific community and the Indian Ocean region and the Right. link with the सो Pacific. वी हैव द सागरमाला प्रोजेक्ट। तो खैर है ही एक आप देखोगे सागर इनिशिएटिव है कि जितने भी हमारे लिटोरल स्टेट्स हैं, जो हमारे इंडियन ओशन नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट से कैसे और स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे अ लॉट ऑफ टाइम पीपल फॉरगेट दैट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ओनली जस्ट अ पैसिफिक ओशन कंट्री, इट्स ऑल्सो एन इंडियन ओशन कंट्री। सो दैट इज वाई वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट्स। एंड आप देखो हमारे जो आप देखोगे क्वाड हो गया, या वैसे भी आप देखोगे डिफेंस एक्सरसाइजेस इतनी सारी होती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिकॉज वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है। Right. Right. I think so. We have touched upon all the major continents and the Indo-Pacific game as well. Now, if we zoom out and we talk about the overall like global issues, then UN comes into the picture. I think UN is in news for all the wrong reasons. Like people talk about UN reforms, climate diplomacy, terrorism. Then we were talking about UN was unable to solve the issue in the Middle East. Yeah. So I want to talk about what is wrong with UN and what are the ideal reforms that this organization needs to go through.
so that we can achieve the goal of global peace, and particularly in this context, the climate negotiations, because climate change and global warming, that is a real danger. And if UN is not functional, if it is not playing an important role, I don't think that climate negotiations will reach their climax. So see, as of now, अगर आप देखें यूएन के एग्जिस्टेंस में प्रेजेंटली द रेलेवेंस इज स्टिल देयर, आई वुड से, बट इन्फ्लुएंस कम हो गया है. सो रेलेवेंस है, लोग जानते हैं कि भाई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इन्फ्लुएंस बहुत कम है, क्योंकि सी यू हैव टू गो बैक टू द पिक्चर कि जो ये 5 कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर्स हैं, out of those 5 countries, 4 countries support India's permanent, Right. inclusion in the UN Security Council. Now, why is it important? Because I go back to the original statements that I made कि जो एक कंट्री आप देखते हैं इंडिया, जो 2 वर्ल्ड के कंट्रीज जब आप देखें, 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट वॉर जोन्स हैं, इजराइल, पैलेस्टाइन एंड रशिया एंड यूक्रेन, वहाँ पे मीडिएटिंग कंट्री इंडिया है. तो वाई, हाउ इज इट पॉसिबल दैट कंट्री कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट स्टैचर ऑफ UN Security Council? Plus the population we Plus have. the population, we're the largest populated country in the world. Our tech CEOs control the world technically. अगर आप देखोगे, we have the largest workforce also that way, youngest population, demographic dividend को हम लोग achieve करने की बात करते हैं. So considering all of those scenarios, the kind of contribution, not just now India, what India has done through past civilization also, it is very important that India should get its place in the UN Security Council. And when you talk about climate negotiation, देखिए हमारा तो हमेशा से ही रहा है कि हम लोग, अगर आप ऋग्वेद उठाएंगे, उसमें हिम्स हैं जहाँ पे हम लोग नेचर की वर्शिप की बात करते हैं. तो हमने तो हमेशा से ही वी हैव टॉक्ड अबाउट लिविंग इन अ सस्टेनेबल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है, बट इंडिया में तो वी हैव बीन लिविंग अंडर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ओनली, एंड वी टॉक अबाउट नेचर. अभी भी हमारे यहाँ नेचर वर्शिप इज अ वेरी क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर कल्चर. सो पेरिस अग्रीमेंट में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो लॉन्च किया, अभी भी आप देखोगे इट इज़ वेरी सक्सेसफुल. इनफैक्ट इंडिया का खुद का टारगेट बहुत बड़ा है, अगर आप देखोगे, विच वी हैव बाय द वे बीन एबल टू अचीव. सो इंडिया का क्या है, देखो, इंडिया इज वॉकिंग द टॉक. इंडिया सेइंग, देखो भाई, मेरे अकेले से नहीं होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज रोका जाएगा. मैं अपने लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट्स रख रहा हूँ, बट आप भी तो कुछ करो. तभी कॉन्सेप्ट आया INDC वाला, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हर कंट्री कुछ करेंगे. इट्स नॉट जस्ट इंडिया दैट इज गोइंग टू वॉक, और हमारे ऊपर ही सारा प्रेशर रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट UN, क्योंकि आप देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थ्रू होता है इनका मीटिंग. UN का ऑफकोर्स से है, बट इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज UN, अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें समय के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है. और अब समय आ गया है दैट इंडिया शुड गेट इस प्लेस, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, अगर उसको ही मौका नहीं मिलेगा Right. टू बी एट द टेबल, देन ऑफ कोर्स कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज एवरी मेजर कंट्री वांट्स टू बी अ पार्टनर ऑफ इंडिया. So that is where I think UN reforms are very important. In fact, अभी 2 दिन पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर was in US, तो अभी ही gave an address to UN General Assembly. तो वहाँ पे एक फ्यूचर को लेके एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जहाँ पहली बार ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में आया है दैट देयर इज अ नीड फॉर UN रिफॉर्म्स. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेजुअल स्टेप है, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये अगले 1-2 सालों में तो होता हुआ नहीं दिख रहा है. इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट समथिंग इज मूविंग. बट आई थिंक इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो इंडिया वर्क्स वेरी क्लोजली विद अ लॉट ऑफ UN ऑर्गेनाइजेशन. उनका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी है, एंड ग्लोबली भी आप देखो, लॉट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बट इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप बोल रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफकोर्स द रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, बट आई थिंक उसमें मेजर जो इम्पेडिमेंट वो ये है कि इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द जनरल असेंबली, बिकॉज बहुत ज़्यादा वोटिंग जो है उसमें मोस्टली इस्लामिक नेशंस की होगी. और एक कॉफ़ी क्लब करके एक ग्रुप है, जहाँ पे पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नहीं चाहती हैं कि इंडिया हो गया वो एक परमानेंट मेंबर बने, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रुप कॉल्ड एज G4, जैसे ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, जबकि कि इन लोगों को परमानेंट स्टैचर मिलना चाहिए. तो उसको काउंटर करने के लिए देयर इज़ अ कॉफ़ी क्लब, कि वो बोलते हैं नहीं, हमें भी मिलना चाहिए. So of course, out of the 5 permanent members, China is the only one which is not supporting it. So of course they have the veto power. So this is something that we have to look into. Right. So we talked about that India is in talks with a lot of different nations, particularly the island nations in the southern hemisphere. Right. UN again is not ensuring climate justice, and you are saying that in next 1 or 2 years there is hardly any chances that there will be a massive reforms. Yeah. So in this context, a new concept is emerging, that is Global South, and India is assuming the leadership of Global South. So what is this Global South?
सो हमेशा जैसे मैंने बताया कि यूरोपियंस जो थे स्पेशली अगर आप देखोगे सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हो कि कोर कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो डोमिनेट करती हैं, फिर पेरिफेरल कंट्रीज होती हैं। तो मेजरली जो सदर्न कंट्रीज थी वो कभी भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, अभी भी नहीं है इतना डेवलप्ड। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज हैं दे आर मच मोर डेवलप्ड। तो वो क्या हो गया कि वो हमेशा वो नॉर्दर्न कंट्रीज यूज टू डोमिनेट द सिनेरियोज ग्लोबल वर्ल्ड अफेयर्स में। नाउ साउथ में अगर आप देखेंगे सो यू हैव कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, इंडिया, साउथ एशियन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो अब वो सारी कंट्रीज का अगर आप देखोगे लीडरशिप पोजीशन जो है वो इंडिया ने कहीं ना कहीं अज्यूम कर ली है। Okay. ठीक है, और साउथ एशिया में आप देखोगे जब मेजर प्लेयर इज चाइना इन इंडिया, अगर आप देखोगे मेजरली जो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इंडिया इज नोन एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इनफैक्ट अभी हम वही बात कर रहे थे कि इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में ये बात बोली है कि इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। जब हम बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, बिकॉज इंडिया इज इन अ पोजिशन राइट नाउ, वी हैव द बिगेस्ट मार्केट, वी हैव द the youngest population जो workforce में काम कर रही है, and we are working on technology, we are working on climate change, we are working on AI, so a lot of things। तो आप देखिए जो influence है वो इंडिया का last 10 years में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। So we are as a collective of the southern hemisphere countries के we are representing as the voice or the leadership जो position है वो इंडिया ने assume कर ली। So that is basically the voice of the global south। Right. Thank you so much, sir. And after the end of every podcast, I request the followers on my Instagram page to ask some questions. So we had some questions related Right, to sure. IR. So I would like ask you some important questions which I Sure. found were interesting. So the one important question, sir, which often comes from the followers is that there is a narrative in UPSC that IR को newspaper से कर लो. So do you think that there is a requirement to read any standard textbook for IR, or newspaper reading is sufficient? सो सी द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो करंट अफेयर्स तो रहेगा, बिकॉज आईआर हर समय चेंज हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ हो जाएगा इवेंट तो रिलेशन चेंज हो जाते हैं, बट देन यू नीड बैकग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक। सो आई वुड रेकमेंड कि वो बैकग्राउंड बनाने के लिए कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्यूचर जानने के लिए, जब फ्यूचर के लिए काम करें उसके लिए आपको हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द कंट्री। सो आई थिंक फॉर दैट यू कैन रेफर टू एनी गुड बुक। मेरी बुक है, वही देख सकते हो आप, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। नाइस बुक। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर, दैट लाइक इन GS1 वी टॉक अबाउट लाइक ज्योग्राफी मैप्स यूज करने हैं, इन GS2 वी यूज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन IR आंसर्स? व्हाट कैन बी दैट एक्स फैक्टर्स व्हिच कैन ऑगमेंट the marks in international relations? So I think one of the most important X factor is in answering an IR question is hitting the topic from all angles, political, economic, social, जिसको हम पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं एक तरीके से। और बेटर ये कि आप जब भी एक्सप्लेन करें, सो इन योर आंसर यू कैन मेक प्रोबेबली अ सर्कुलर फ्लो चार्ट, एंड उसमें से आप ऐसे स्पोक्स निकाल दीजिए जिसमें पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिक इशू, स्ट्रेटेजिक इशू, डिफेंस इशू, ऐसे आप उसको अलाइन करते हैं तो वो उस सारे एंगल से उस रिलेशनशिप को वो कवर कर देता है। दैट इज द एक्स फैक्टर। ऑफ कोर्स मेकिंग मैप्स ऑलवेज हेल्प्स। And so lastly, what was your opinion on the recent UPSC mains exam which happened, particularly GS2? Do you see any changes in the trend, or is it only getting more dynamic? So see, dynamism will always be there. GS2 का topic ऐसा है, but one thing which I was very happy to see is the focus of UPSC shifting back to especially countries like Central America, Central Asia, अफ्रीका। तो मैं इनफैक्ट ये बोल भी रहा था अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी समय से कि अगर आप देखेंगे नॉट जस्ट मेन्स, सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ मेन्स यू विल आल्सो हैव टू सी द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स में बहुत समय से यूपीएससी ने अफ्रीका नहीं पूछा था, and this time they have asked 3-4 questions on Africa because of the coup and a lot of issues, climate change के issue चल रहे हैं या diseases के outbreak हैं। So that pattern has been repeated in mains because Central Asia बहुत time से missing था, and everybody is talking about Israel, Palestine and US. So even UPSC is like, let me try and ask something else, So of course newspaper will always help you build and shape opinions, but with a pinch of salt I would say all the aspirants and audience कि जो भी पढ़ो उसको एक नज़रिए से देखो and build your own viewpoints. Don't get biased of what one newspaper is saying or other newspaper is saying. One mantra that I can always give to UPSC aspirant is follow Gautam Buddha. ठीक है, you always say follow the middle path. तो मध्यम मार्ग पे ही चलना है आपको UPSC में, क्योंकि मध्यम मार्ग फॉलो करोगे बायस नहीं रहोगे, UPSC एग्जामिनर को भी बायस नहीं देखेगा, और मध्यम मार्ग ही करना है आपको, बिकॉज 10 में से 5 नंबर अगर हर क्वेश्चन में आ गए यू विल बी ऑल इंडिया रैंक 1। Right. I mean, sir, this was like a great learning experience, like I Thank said you. at the start of the podcast. And I'm pretty sure that whoever
watched the podcast till the end. I'm sure उनका पूरा revision हो गया होगा year का. It was a perfect recap. We touched upon a lot of topics for mains, for prelims, and I think for prelims we talked about a lot of issues which can directly you can see them in the prelims, Yeah. right? So thank you so much, sir, Thank for you. giving us your time, and this was an amazing podcast. I really enjoyed the experience. I hope it was the same for you. Thank you so much, and it was a lovely experience. No, thank you so much for inviting me. I hope it was useful. It will be useful, I'm pretty sure, for all the audience and aspirants. And I'm looking forward to such, more thematic podcast from you. So all the best for that. Thank you. Thank you so you. much.